Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. Thank you very much and for being so patient and waiting for us to begin. The reason for this little delay was that the four of us, we were discussing, how to, take the session forward. What was some feedback from the WhatsApp group yesterday? What conversations were taking place? What is some clarity? I mean, do we need to offer some clarity on the discussions that are taking place yesterday? But that there may be conflicting information available in the market through a friend, through another individual, through a Facebook post, or through an online, online discussion or a forum. So we were discussing all that. I'll just make one very explicit announcement, and then I'll hand over to Arsalan, who will introduce our guest speaker today, Sana Shiraz, and we've also been joined by our worthy panelist Ali Mansoor today as well. So, all right. So yesterday I noticed that there was some in a particular WhatsApp group. This was being discussed that whatever suggestions are being given in the group, there may be an opposing or a different suggestion being given by somebody else, on the net. Somebody who must have, given a suggestion of how to write a resume, or somebody must have, for example, recorded a YouTube video. But the thing is that we are bringing in HR experts for a specific purpose for this conversation. These HR experts have previously worked and are currently working in multinational organizations. I understand that most of you aspire to enter into these organizations. So when you submit your resume, sitting across the table are these professionals, the HR professionals who get the first glance of your resume, okay? And therefore, whatever is coming through these sessions is to be taken as, number one, best practice in the market. Okay. Number two, authentic information, because it's coming directly from these HR experts. It's not a third person, not a PhD in resume writing who's saying things to you. These are people who are practically doing things, practically looking at your resumes, right? Practically trying to differentiate one resume from the other, practically looking at, oh, this individual has made a mistake in the resume, right? I made a mistake. I mean, not everybody is an angel. मैंने जब अपना पहला resume लिखा तो मैंने City Bank के spelling, City School वाले spelling लिख दिए थे, CITY. A very, very big mistake. An exceptionally big mistake. You cannot spell the name of an organization wrong. But glad that I shared that resume with a friend of mine before submitting it. He said that, look, this Citibank is CITI Bank. It's not CITY Bank. Yeah, but City School is CITY School and not CITI School. So, very, very particular about a few things. No, I'm not sure if people who are writing internet reviews about CV writing will tell you about all these things. But here we have professionals sitting with us who are telling us that yes, we look at these things and these things matter a lot. Yeah. So if you've written the organization's name wrong, if you've let's say included logos, which is intellectual property breach, or if you have written about yourself in a particular way and not in another way, what difference does it make? What perception does it generate? So I think this is very, very important information. These sessions are recorded, yes, and you can definitely go back and reflect on what the learnings have been from these sessions. Please take time out, listen to these conversations very intently. And I would say once this conversation is over, do not just leave your station and go have your dinner. Sit down and look at your resume and look at all those mistakes while the information is just still fresh in your brains. Look at those, look at your resumes and look for those errors. Look for those improvements that you need to make in your resumes. So very, very important sessions. I will once again thank Ali and Sana Shiraz both
for taking time out of their precious time in this busy schedules and being with us today. And a very colorful Hafiz Arsalan should be making all that possible. So thank you very much, Arsalan. मैंने आपकी shirt की तारीफ भी कर दी है. So now I hand over to Arsalan for taking the conversation forward. Ji Arsalan, over to you. I think you're still muted. Is it? Yes. Yes. Thank you, Harun. Assalamu alaikum. Thank you for joining us. Today we have a Sana Shiraz. अब सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. She has done masters in HR from King College University London, UK, and she has worked with the Fatma Group, Drive Venture Private Limited Group, and Hari Foods. She has a very good experience in HR. तो आज इनको जो यहाँ पे बुलाने का मकसद है वो यही है कि हम CV राइटिंग के ऊपर इनसे इनकी सजेशंस और आप लोगों की जो हमने CVs को रिव्यू करना है, तो वो आज उसके लिए हमारे पास सना शहराज है. इसके साथ साथ हमें अली मंसूर ने भी ज्वाइन किया है. अली मंसूर, अगेन इंट्रोडक्शन उनका बताना जरूरी है. He has done masters in HR from Kingston College, Kingston University, London, UK. He has worked with Alphala Bank, Standard Chartered Bank, and now हम हमारे साथ आज जो हैं ये अवेलेबल हैं फॉर दिस सेशन. सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करें, मतलब हम आज के एजेंडा की तरफ जाएं, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है अली मंसूर से. हमने कल जितनी भी हमने डिस्कशन की है वो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सीवी में जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो डिस्कस की थी और क्या क्या उसमें सजेशंस इंप्रूवमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, और सीवी का फॉर्मेट भी एक डिस्कस किया था. मेरी ये रिक्वेस्ट अली मंसूर से कि हम फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में हम उसका एक ओवरव्यू कर लें, ताकि हमें जितनी भी हमने कल बातें की थी वो आज हम करंट सिनेरियो में, क्योंकि अभी हमने अप्लाई करनी है, तो हमें दोबारा से वो रिमाइंड हो जाएंगी. सो अली, इट्स ओवर टू यू, एंड अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. आपने आप टाइम निकाला. आप सबसे पहले हमें जो कल हमने डिस्कशन की थी उसके ऊपर थोड़ा सा हमें उसके ऊपर ओवरव्यू दे दें, एंड आफ्टरवर्ड्स मेरी सना शराज से रिक्वेस्ट होगी कि वो उसके अंदर जो एडिशन कर सकती हैं वो उसमें जरूर करें. जी अली, इट्स ओवर टू यू. जी, अस्सलाम वालेकुम जी, thank you. Arsalan and all other participants, I'm really sorry I'm not visible, but you know I'm trying to log in from a laptop. I'm logged in from a cell phone, and probably there is a compatibility issue. So you would be able to see me in a while. So okay, what we talked yesterday, it was about that you guys need to make a lot of emphasis, need to put a lot of energy in your CVs. हमने बात की थी कि once you are graduated from your university, you're probably done 90% of your efforts. Remaining 10% are very important, because obviously once the graduation is done, you're done with your academics. The next step is to find a job. और सबसे important चीज जो job के लिए, that is your CV, because that's your non-physical presence in front of an employer. आप नहीं जाते, लेकिन आपकी जगह आपका एक CV जाता है रिक्रूटर के पास. सो यू नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली. देन वी टॉक्ड कि क्या नॉन सीरियसनेस हैबिट्स हैं, क्या जेनेरिक मिस्टेक्स हैं, इश्यूज हैं, पंक्चुएशन के प्रॉब्लम्स हैं CVs में, ग्रामेटिकल एरर्स हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट इंडेंटेशन प्रॉब्लम्स, formatting of the CVs, different fonts that people are using. एक ही CV में you'll see about 3 or 4 different types of fonts. उसके बाद अभी जो हारून डिस्कस कर रहे थे, और सारे ऑडियंस जो है हमारे लिसनर्स वो भी ऑब्वियसली इस वक्त बात सुन रहे होंगे. हारून ने जो बात की है ना कल, उसमें मैं ज़रा कमेंट करना चाहूँगा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ये कंसर्न शो किया है कि सीवीज की तो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, बिकॉज देयर इज नो सेट स्टैंडर्ड फॉर दिस. सो आई एग्री विद इट, और मैंने कल ये मेंशन भी किया था कि सीवी का कोई सेट स्टैंडर्ड या पैटर्न नहीं है. इफ यू गो ऑन गूगल यू विल फाइंड लाइक मिलियंस ऑफ पैटर्न्स देयर. आपको ये देखना है कि आपको सूट कौन सा करता है. सो पैटर्न इज नॉट स्टैंडर्ड, बट contents are standard for a good CV. I'm repeating, contents are standard for a good CV, and that's what we've been talking about yesterday.
कि आपने अपना नाम कैसे लिखना है, एड्रेस प्रॉपर देना है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सो रिमेंबर, आई मीन, जस्ट इमेजिन अ CV which doesn't have an objective. It's a standard content of a CV. Imagine a CV which talks about internships or your job experiences, but you don't explain the JD. So that's what we talked yesterday. You mention karna hai. Similarly, we talked what are the best practices to mention your education. How can you mention your certificates? How can you mention your extracurriculars and your references, etc., etc.? So what I'm trying to say, I'll put some re-emphasis on this कि कंटेंट स्टैंडर्ड है वो आपने जरूर उस पर फोकस करना है. ठीक है, फॉर्मेट की कोई बात नहीं है, दैट्स ओके. अच्छा, उसके बाद हमने कुछ डिस्कशन की थी. हमारे पास सैम्पल सीवीज आए थे. एक सैम्पल सीवी मैंने भी शेयर किया था और Yes. उस पे हमने पार्टिसिपेंट्स को एडवाइस किया था कि आप किस तरह से अपने सीवीज इंप्रूव कर सकते हैं, बेस्ट स्पेस सीवी की आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. 3 years, 5 years experience के लिए you should restrict yourself to a single page CV. Please don't move to 2 or 3 pages. That's what we discussed yesterday as well. और ये कि आपने जो मेन एम्फेसिस है CV का, that has to be on your achievements. That has to be, I mean, that's the crux of your CV. आपने CV इस mindset से prepare करना है what employer is looking forward to. आपने इस माइंडसेट से प्रिपेयर नहीं करना है कि आपने अपनी 20 सर्टिफिकेशन उसमें मेंशन कर दी हैं और आप उसका एसेंस लूज कर गए हैं, या आपने जॉब डिस्क्रिप्शन 20 लाइन में एक अपनी एक्सप्लेन कर दी है और पूरे सीवी पे बस वो जेडी ही नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं है. सो इट हैज टू बी अ वेल बैलेंस सीवी जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा. So that's what it yesterday, ji. So over to you, Arsalan. Thank you जी. for giving me an opportunity to share the summary of what we spoke yesterday. Thank you. जी, थैंक यू अली, थैंक यू. इसमें हमने जो मैं स्ट्रैक्स डिस्कस की थी वो अली ने जो है लिस्ट डाउन भी कर दी हैं. अब नाउ हम सना शराज को मतलब सना शराज को इनवाइट करते हैं. सना शराज, आपका भी ह्यूज एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आज आपने हमें टाइम दिया है, तो आपकी सजेशंस जो हैं वो हमारी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं चाहूँगा आप भी इसमें क्या ऐड करना चाह रही हैं, प्लीज. थैंक यू. Assalamualaikum everybody. Thank you Arsalan for giving me this opportunity. I think what Ali covered largely, basically he touched on all the important points. So I do agree that जो आपका format होता है CV का, it's not one standard format. And I do understand that when you go in the industry, there are different stages of building your resume and there are different types of building your resume. Obviously, a fresh graduate ka resume will be very different from a resume of someone who comes with an experience. And yes, there are resumes which mainly focus on your work experience. वो start work experience से होते हैं, कुछ combination में होते हैं which highlight your skills and your experience together. कुछ होते हैं जो हर particular job के according targeted होते हैं. They're tweaked as you're applying for relevant jobs. And then obviously there are other different kinds of resumes. You as a resume writer need to be very clear कि आपको कौन सा resume का format suit करता है. राइट आप शो क्या कराना चाहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो अपनी स्किल्स सीखी हैं आप उसको शोकेस करें. राइट, सो इफ यू कम विद लेट्स से जीरो एक्सपीरियंस बट यू हैव डन योर इंटर्नशिप्स, तो आप अपनी इंटर्नशिप्स की बात करें, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस, वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, बट यू शो व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम देम. इट्स नॉट जस्ट के जी आई डिड दिस एंड आई डिड दैट. No, you have to use actionable verbs. What did you achieve? What did you आपने कोई चीज एनालाइज की या आपने किसी चीज को इनोवेट किया, कोई चीज आपने डेवलप की. एंड देन बिकॉज आप जब एक एम्प्लॉयर को अपना रेज्यूमे भेजते हैं, वो आपके रेज्यूमे में ये देखना चाहता है व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग. You have to define that value through your resume. You have to show what soft skills you have. You have to show what hardcore skills you have. Soft skills होती हैं जो आप over the period of time build करते हैं. For example, time management. For example, communication skills. For example, let's say leadership skills. एक fresh graduate की क्या होंगी? आप एक
during your courses या during your जो भी आपके course works होते हैं, आपके group works होते हैं, you work in a group, you work as a team, उसके अंदर आपका role क्या था? क्या आप automatically एक leader बन जाते हैं? Do you lead that group? उसका result क्या होता है? That shows as a leadership skill. आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. Hardcore skills are technical skills. For example, आपने जिस company में apply किया, is there any particular software that you're equipped with, which is the requirement of that job also? You can talk about that. Is there a particular, analytical tool that you're equipped with? आप उस बारे में उसको highlight कर सकते हैं. So when you're writing your resume, you really have to see through and evaluate yourself कि आप क्या चीज show करना चाहते हैं और आप उसको किस बेहतर तरीके से show कर सकते हैं. And always remember that you have to show your achievements. You have to specify what accomplishments you've had, whether it's throughout your educational time period or your internships or some other work experience or जब आपकी अपनी work history होती है उसके अंदर. So you need to be very open and you need to be very thoughtful of when you're writing these things. अक्सर मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट करना चाहूंगी. अक्सर जब हम resumes देख रहे होते हैं और जब हम when we're talking to people, there is a disconnect. जो resume में बात हो रही होती है वो बंदा असल में translate नहीं कर पाता. That's where the disconnect comes. And ये चीजें recruiters हों, आपके headhunters हों, वो easily pick up कर लेते हैं. So always put in the stuff that you can easily defend, that you can easily talk about. Do not copy stuff from someone else's resume. Do not put in things which you feel will make your resume look very nice. Because अगर आप उस चीज को defend नहीं कर सकते, उस चीज के बारे में बात नहीं कर सकते, then it gives a very negative connotation. So when you're writing your resume, be very careful of आप क्या लिख रहे हैं. आप अपने course work की बात करें. Are you hands on with your course work knowledge? आपकी जो ACCA के fresh members होते हैं, you go through your I think course work as well. कुछ लोग opt करते हैं. आप अगर उसके बारे में मेंशन कर रहे हैं, you should be very clear on कि आपने क्या किया था, उसका आउटकम क्या हुआ था. So इस तरह की चीजें हैं which I think you can talk about. जो एक्सपीरियंस वाले हैं, people who come from experience, you have to highlight top 3 or 4 accomplishments and talk about that. ये भी नहीं कि आपने पूरी JD लिख दी है और accomplishment की बात ही नहीं की है in your resume. So you have to be very clear कि जब आप resumes लिख रहे हैं, आप उसमें show क्या कराना चाह रहे हैं, आपकी क्या achievements हैं, so that you can highlight why you are valuable to a particular employer. Thank you, Arsalan. थैंक यू सना. पार्टिसिपेंट्स हमने देखें अली की बात भी अली की भी सारी कन्वर्सेशन हमने सुनी है, हमने सना शराज की भी सुनी है. देखें इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, इससे रिजल्ट ये निकल रहा है. देखें सीवी के अंदर वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट आपको देखना है कौन सा सूट करता है, और उसके साथ साथ आपने जो उसका कंटेंट है वो उसका स्टैंडर्ड होता है. अब जॉब आप अगर फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं ऑडिट के लिए कर रहे हैं, अकाउंट्स के लिए कर रहे हैं, तो आपको अपना जो इवन की जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, देखें आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो आपकी जो सीवी के अंदर इंफॉर्मेशन है वो अलाइंड होनी चाहिए अब जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. अब कल भी हमारी ये बात हुई थी, अली ने की थी, सना ने भी की है, कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं. देखें अब आपने ये देखना है कि जब आपके पास एक सीवी आता है, बीइंग अगर आप खुद अपने आप को उसमें रखें, एम्पैथी हो जाए आप, एम्पैथी का मतलब अपने आप को इंटरव्यूअर समझें, और आपके पास एक सीवी आती है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर रही है, आप ऑब्वियसली उसको पिक करेंगे, उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे. तो हम क्या करते हैं, हम एक सीवी को बना के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके बस जॉब आती है उसका एड्रेस चेंज करते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं, और शायद यही अप्लाई कर देते हैं कि सर प्लीज फाइंड दी अटैच्ड फाइल. इवन कि हम ईमेल की बॉडी के अंदर भी जो है वो कुछ मेंशन नहीं करना चाहते. अच्छा, अब हम सीवी इवैल्यूएशन की तरफ तो जा रहे हैं. उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है दोनों के साथ, अली के साथ और सना शराज के साथ, कि जब भी हमारे पास जब सीवी हम अप्लाई करने लगते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, डियर सर प्लीज फाइंड दी अटैच्ड फाइल. ओके, अगर एक तो ये कि क्या कवर लेटर की जरूरत है, और अगर कवर लेटर की जरूरत है तो क्या उसको अटैच करना है या ईमेल की बॉडी में पेस्ट करना है, और अगर अटैच करना है तो क्या ईमेल की बॉडी में क्या मेंशन करना चाहिए. तो एक मैं क्वेश्चन बस ये करना चाहूंगा, फिर जिन्होंने सीवीज आज मुतहिद को भेजी हैं रिफाइन करके, रीड्राफ्ट करके, फिर हम उसकी तरफ आते हैं. सो मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ टू अली एंड सना, कि क्या कवर लेटर की जरूरत है, और अगर कवर लेटर की जरूरत है तो हमें अटैच करना चाहिए या सीवी की बॉडी में
ईमेल की बॉडी के अंदर हमें कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहिए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अली की तरफ। अली जी बताइएगा। अच्छा अरसलान, इसका तो आंसर बड़ा सिंपल सा है। उसकी वजह ये है कि अब आपने रिसेंटली एक ट्रेंड देखा होगा, जितनी भी जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं उसके अंदर कवर लेटर नॉर्मली मांगा ही नहीं जाता। यस कवर लेटर कोई 10 to 15 ईयर्स पुरानी बात है, जब हमारे रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स कंपैरेटिवली वीक थे। उसके बाद ईमेल्स का एज सच एक्सेस हर यूजर के पास नहीं था। तो नॉर्मली ये होता था कि बाय पोस्ट जब सीवीज आते थे तो उसके साथ कवर पेजेस अटैच कर दिए जाते थे। अब तो ईमेल बॉडी आपको प्रॉपर ऑप्शन देती है, और अगर कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो और रिक्रूटर सीरियस है कैंडिडेट के बारे में, तो वो उसको लिंक्डइन पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे उसने अपना प्रोफाइल दिया हुआ है वहाँ पे भी सर्च कर सकता है और ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है कि कैंडिडेट कितना सूटेबल है। बहुत सारे सीवीज जो हमारे पास आते हैं उसके अंदर ईमेल बॉडी के अंदर लोग अपना इंट्रो दे देते हैं, एंड दैट परफेक्टली वर्क्स। वो वाला जो ट्रेंड था कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर सीवी होता था, साथ वर्ड पे ही एक फाइल अटैच कर दी जाती थी कवर पेज की, वो तो मैंने बड़े अरसे से देखा ही नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट काफी मार्केट से अबॉलिश हो गया है सच। लेकिन शायद हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी कवर लेटर की डिमांड की जाती है, मतलब उसमें इवन के जो न्यूज़पेपर में आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्वियसली पेपरा रूल्स भी हैं और दूसरे रूल्स भी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी अरसलान जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। गवर्नमेंट सेक्टर तो अभी तक पोस्ट पे ही चल रहा है, यही तो मसला है। जी इलेक्ट्रॉनिक तो ठीक वो आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लेते, तो वो अगर आप हाँ पोस्ट पे बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो फिर बिल्कुल अटैच करें। तो बिल्कुल टच करना है। जी सना वो तो आपको नॉट पता है श्योर। बल्क हायरिंग होती है, 5,000 हाँ एप्लीकेंट्स, 7,000 एप्लीकेंट्स, सो दिस हाँ इज दैट्स व्हाई दे नीड दिस। ओके थैंक यू अली। जी सना। जी Arsalan, I would say कि it really depends on the position आपकी, and it really depends on the kind of resume you're sharing. Generally क्या होता है कि cover letters are required where you have a very brief resume attached, right? People also need to understand and realize that there is a difference between a resume and a CV writing, right? The CV is completely different from what a resume is. So you can introduce your cover letter is basically an introduction to how you are as a person, what your objectives are, what skills you possess, and what sort of a role you're looking for. ठीक है? So आप उसको अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन ईमेल की बॉडी में देना है, that equally works. अगर आपने कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं, जॉब पोर्टल्स ऐसे हैं, और कुछ कंपनीज की भी जॉब पोर्टल्स ऐसे हैं जो अभी भी विद सीवी वो आपका कवर लेटर की भी ऑप्शन देते हैं टू add on, because generally people also tend to look after कि जी इंट्रोडक्शन से कितना को बंदा सुटेबल लग रहा है और कितना नहीं लग रहा, because generally क्या होता है कि जो हमारे रेज्यूमेज होते हैं they tend to become really lengthy. ठीक है? So आपका introduction is very important. You give it in the form of a cover letter, you give it in the form of the body of an email. It is important to introduce yourself. It is important to talk about your key skills. It is important to talk about your very solid key experience and accomplishments and what you bring to the organization. ये नहीं कि आप पूरा जी CV ही दोबारा replicate कर दें, बट आप थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करें rather than sending one liners. I've also seen emails where there is no text, there is only an attachment. So I would always suggest कि candidates को बहुत जरूरी है that they need to introduce themselves to the organization. तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगेन ये भी डिपेंड ऑन द सिनेरियो है। पार्टिसिपेंट्स हमने वही बात है, आप इस डिस्कशन को फ्रॉम लास्ट वीक में आप लोगों के साथ हूँ, हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि देखें अगर आप ये समझते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली शायद मुझे बात कहनी भी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि आप एक दफ़ा सीवी बना के उसको रख दें और हर जॉब के लिए अप्लाई करें तो दैट्स नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट वर्क आउट। तो आपको अपनी सीवी को अपनी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसको अमेंडमेंट्स के मुताबिक अलाइंड करके ही आपको सेंड करनी चाहिए और फिर आपको रिजल्ट्स देखने चाहिए। ऑब्वियसली यू विल गेट द रिजल्ट्स, बट आपकी एफर्ट्स इसके लिए रिक्वायर होंगी। तो जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट सीवी नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट जो है वो जो हमने कल डिस्कस किया था
उसमें जो कंटेंट्स थे या उसमें जो मेन इंफॉर्मेशन, मेजर इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए थी किस तरीके से, वो जरूर होनी चाहिए। अच्छा मुताहिद, ये सीवी जो है, अब हम सीवी एवेल्युएशन की तरफ चलते हैं जिन्होंने रीड्राफ्ट किया है। मुताहिद, ये सीवी जो है बेसिकली हम कल रिव्यू कर चुके हैं और और ये मेरे ख्याल से ये सेम टू सेम उसी तरह ही है सीवी। आप देखिएगा कल हमारे सेशन के बाद जो आपको सीवीज रिसीव हुई हैं, हाँ, हमारे सेशन के बाद जो सीवीज रिसीव हुई हैं लाइक 8 PM टू ऑनवर्ड्स, आप उन सीवीज को जो है वो लेके आइएगा, मतलब जो आपको कल रात में या सुबह में सीवीज रिसीव हुई हैं, क्योंकि ग्रुप के जी अंदर सलाम, ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये सीवी जो है ये आज मुझे रिसीव हो गई है, ये अपडेटेड है उनकी तरफ से, ठीक है, तो ये भी चल देख लीजिएगा। ओके। उसके बाद और भी सीवीज है। अच्छा, ये कल हमने एवेल्युएट की थी, शायद उन्होंने अब इसको दोबारा से अगेन अपडेट किया, और अगर किया तो वेरी गुड। चलें जी, सना शराज, दिस इज द सीवी, मुताहिद इज देयर, वो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आराम आराम से और इसको फिर इसी तरह ये स्क्रॉल अप करेंगे, तो इसमें अब आपने जस्ट गाइडेंस देनी है वेयर जहाँ पे आपको कोई वीकनेस नजर आ रही है या यहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि फर्दर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, वहां पे आप अपनी सजेशंस दे सकती हैं। आप जहाँ पे ओके रोकना चाहें रोक सकती हैं सीवी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। मुझे हम नीचे थोड़ा सा चलते हैं। हाँ चलें चलें मुताहिद, चलते जाएं और इसको फिर इसी तरह, ये 1 पेजर सीवी है, पेज 1 of 1 और रेफरेंसेस हैं, और इसी तरह अब मुताहिद इसको स्क्रॉल अप करें आराम आराम से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कल सीवी जो है वो 2 पेजर 3 पेजर पे अवेलेबल था। आज इन्होंने अपनी स्पेस को काफी पॉजिटिवली इसको यूटिलाइज किया है और सीवी में कहीं स्पेसिंग्स भी, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसिंग्स भी मुझे नहीं नजर आ रही हैं, बट ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमें ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। नेम और मतलब फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल ठीक लग रही है, इसमें यूनिफॉर्मिटी भी है, लेकिन बहरहाल सना, इट्स टू यू। जी, so Arsalan, I would just say कि Usman has mentioned key activities that he has been doing अपने during his work experience. I would just say here कि जो इन्होंने अपनी achievements लिखी हुई हैं, generated जी efficiency savings of 5% after office automation. I would say कि achievement should always lead to a certain output, right? जी यस Generated, बिल्कुल। what did he do? Office automation अगर हुई, वो किस चीज की office automation हुई? वो मतलब इससे I don't understand, is it for everyone in the organization or is it for him? Right? Because he was in जी finance. तो ये क्या करे? इनका रोल क्या था इस हम्म अचीवमेंट में? ठीक है? Then इसी ये तरह अगर आप यस यस नीचे आए तो इन्होंने लिखा है saved over USD $45,000 by automating monthly reporting process using Excel and VBA. That's great that savings इन्होंने generate की हैं। उस automation से, उन savings से अगर इन्होंने क्या, मतलब पहले क्या था और अब अगर इन्होंने automate किया है तो क्या process efficiencies आई हैं? So he needs to use the terms which are action oriented. ठीक है। Right? ये कल बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही कल भी बात हुई थी कि पहले क्या था और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया और उसमें फिर क्या इम्पैक्ट आया, तो इसमें इम्पैक्ट और पोस्ट एक्शन तो है, बट प्री सिनेरियो नहीं है कि पहले सिनेरियो क्या था। Yeah, and that's great that he's been awarded Employee of the Month for hardworking and dedication, but it should not just be hardworking and dedication, because generally everybody says they're hardworking and dedicated, right? So thoda sa he needs to write what he achieved because of which he was given Employee of the Month, ताकि it becomes very concrete. Very concrete, specific, yes. ठीक है, he needs to be specific here. यस थैंक यू। ठीक है सना, बिल्कुल वेरी गुड फीडबैक। अली, इसमें जो है ये आप नॉट श्योर टर्न आप ही बता दें, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था बट मेरा ख्याल है वो आप खुद ही कर रहे हैं। Arsalan, देखिए, I'm really happy. He's done some good changes. Like you said, yesterday the CV was on 3 pages. Today it's on 1 page. So good move.
बाकी ये है कि मेरे ख्याल में सना ने भी बड़ी अच्छी सजेशंस दे दी हैं। आई पर्सनली फील कि हम माइक्रो लेवल पे जाके एडवाइस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा परसेप्शन का भी फर्क आ जाता है। Yes. Maybe the guy wants to continue with this format. अब देखें, मैंने कल एक बात की थी कि आपने अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, जो कि आज भी हम्म सीवी में नहीं था। If this guy has हम्म been to University of Sunderland UK, so ये एक privilege qualification है, हर कोई तो नहीं कर रहा। But if he's fine not explaining this, so मैं मुतहर थोड़ा नीचे उसकी करते हैं। डिटेल में नहीं जा सकता जी, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। बाकी ये है कि ओवरऑल इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट मुताहिद सीवी। अच्छा ये आप देख रहे हैं सना, हाँ, दानियाल को देख रहे हैं। दानियाल अहमद। नाउ अली, नाउ फर्स्ट इट्स योर फर्स्ट टर्न। अब आप दानियाल अहमद की सीवी को मुताहिद इसी तरह स्क्रॉल डाउन करें स्लोली एंड देन स्क्रॉल अप। ये सीवी हमने कल भी रिव्यू किया था। वो उन्होंने वो जो रीड्राफ्ट करके इसको भेजने की कोशिश किया। देखें सब जो हैं लेस एक्सपीरियंस वाले 1 पेज के ऊपर लेके आए हैं आपके कहने पे सीवी। तो अच्छा वैसे ही ट्राई। हाँ हम्म जरा स्क्रॉल मुताहिद डाउन कीजिएगा प्लीज। स्क्रॉल डाउन करें देखिए मुताहिद। कैरियर जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल इज फाइन, कैरियर ऑब्जेक्टिव इज ओके, एक्सपीरियंस इज ओके, 4 to 5 लाइंस में जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई, कंपनी आ गई, लोकेशन आ गई, टेनर आ गया, दैट्स ओके। एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, स्किल्स एंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल। अच्छा देखें, एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज जो है ना वो ऑब्जेक्टिव के नीचे होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज यहाँ नहीं होना चाहिए। और एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज के बाद ही शुड मेंशन हिज एक्सपीरियंस एंड आफ्टर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, academic qualifications and professional certifications, associate chartered certified accountant, advanced foundation in professional ethics। उसके बाद है जी आपकी achievements, high marks achiever in ACCA, ओके। हाई मार्क्स कितने मार्क्स हैं, अगर ये मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस 6 digits, yeah, so that's kind of okay. You can seek Sana's advice to me. Again, there is a lot of improvement since yesterday. ये भी सीवी प्रॉब्ली 2 या 3 पेजेस पे था। बस वो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज जो है ना वो बेसिकली दिस इज वेयर द गाय विल बी सेलिंग हिमसेल्फ, ये ऊपर होना चाहिए। ये ऊपर होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह। यस, और ये है भी रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, रिस्क मैनेजमेंट। जी अच्छा अली, एक एक्सपीरियंस के बाद जब हम सेकंड एक्सपीरियंस डाल रहे होते हैं तो क्या हमें एक स्पेस मतलब 1 स्पेसिंग लाइन भी नहीं देनी चाहिए जैसे इन्होंने नहीं जहां देखिए, खत्म किया? और ये अगेन इट डिपेंड्स ऑन रीडेबिलिटी। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई फॉन्ट ऐसा यूज किया है रीडेबिलिटी नहीं आ रही, तो आप 2 स्पेसेस भी दे दें। लेकिन अब देखें, अगर कोई 8 फॉन्ट के ऊपर अपना सीवी बिल्ड कर रहा है, एरियल 8, वो इतना छोटा हो हाँ जाता है कि आपको शायद 2 हाँ स्पेसेस देनी पड़ेंगी रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने ब्लू कलर में अपना कंपनी मेंशन किया है, जिसकी वजह से आपको एक डिफरेंशिएशन इम्पैक्ट आता है जब आप उसको हाँ उसकी स्किमिंग करते हैं सीवी की, कि अच्छा ये अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है सीवी। अगर ये फॉन्ट चेंज कर दें तो शायद आपको पता ही ना चलेगा, ये दोनों ऐसे हाँ अमेलगमेट हो जाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। लेकिन नहीं कर एक स्पेस जरूर दे देनी चाहिए इजी रीडेबिलिटी के लिए। सकते, बिल्कुल। ठीक है जी सना। जी अच्छा, पहले तो अरसलान, आई वुड जस्ट से अगर लोगों ने अपनी सीवीज कंसाइज की हैं, दैट्स ग्रेट जॉब डन, बिकॉज ट्रस्ट मी, एक्सपैंड करना आसान है, कंसाइज चीजों को करना बहुत मुश्किल होता है। You know, when you get to क्या निकालें क्या ना निकालें। So I think on the whole everybody should feel encouraged if they've managed to bring it on one page. इनका मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आई थिंक देखो, जैसे इनका जब मैंने इसको एट फर्स्ट ग्लांस देखा तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में टाइम लगा कि पहली जॉब किधर एंड हुई और दूसरी जॉब किधर स्टार्ट हो रही है। हाँ सेकेंडली, जब इन्होंने सेकेंड उस पे लिखा बेस प्रैक्टिस सपोर्ट्स, ही इज मेंशन्ड in bullets that it's one of the largest UK based accountancy firm in Pakistan. This should
this is irrelevant, तो right? ये इसके आपके रोल में JDs का पार्ट नहीं था obviously. Yeah, because this doesn't reflect his role. This is more about information on the company. ठीक है? Secondly, if I have to see how that person is as an individual, इन्होंने अपनी expertise और skills सारी list down किए which are technical, which he's studied. How is he? Is he a good team member? Is he good in communication? Is he good in time management? Is he good in analysis? वो सब इधर missing है. ठीक है. So the softer skills are missing because you guys have to understand it's always a mix of softer skills and hardcore skills. It's never either or. ठीक है? फिर नीचे अगर आप achievements में आ जाएं, so जहाँ पे exams लिखा हुआ है F2, F3, F4. अब frankly I would not know what is F2, F3 and F4. So maybe he can replace those with the इनके जो name of the subjects हैं, subjects. हाँ, name of the subject. कौन से subjects थे जिन्होंने इनमें लिया. So that will be helpful for the recruiter कि अगर कोई question होता है उससे related, so that person can always ask. So I think ये थोड़ी सी tweaks है, अगर ये कर लें, so that will be great. वेरी गुड फीडबैक. बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके जो है इसका बताया है. ये जो है F2 एंड F3 एंड F4 बॉय, बिल्कुल ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ F2 क्या है. मैं ही समझ सकता हूँ F4 लॉ का पेपर है और F2 जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है. तो ये जो HR का रिसोर्स HR होगा, HR का एक्सपर्ट होगा या जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे उनको नहीं होगा. तो अगर आप जो है इसको सब्जेक्ट्स का नाम ऑब्वियसली मेंशन कर देंगे तो वो एक अगर आपकी जॉब पोजीशन के लिए अलाइंड होगा तो वो ऑब्वियसली आपको शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करेगा. वेरी गुड. नेक्स्ट CV मुताहिद. फाइजुर रहमान, ACCA. जी सना, नाउ इट्स योर टर्न. जी मुताहिद, थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करें, मुझे एक दफा सारा दिखाते हैं. हाँ बिल्कुल सना, आप आराम से इसको करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी नहीं है, आराम से इसको करें. हमारे ऑडियंस की FOC में मतलब हमारी इनकी CVs रिव्यू हो रही हैं, रीराइट हो रही हैं. हमारी ऑडियंस और फैटर्निटी को और क्या चाहिए. आप लोगों का टाइम मिल रहा है, आप लोगों की सजेशंस मिल रही हैं. नहीं तो मार्केट में तो आजकल ट्रेंड है, तो ये तो लोग काम किसी और से करवाते हैं. ठीक है, सही. नीचे आ जाए. अच्छा, थोड़ा सा फिजान हैज टू reframe his CV because CV directly starts from the experience, right away. अगर आप पहले ऊपर देखें तो बिल्कुल आपका experience से ही start हो जाता है. There is no intro to the person. yes. ठीक है. And I understand कि obviously that this person is experienced, तो वो काफी चीजें शो करना चाह रहे हैं. बट मैं उनको ये कहूंगी कि इसके अंदर से वो सिफ्ट थ्रू कर सकते हैं या कंबाइन भी कर सकते हैं चीजें, वेयर ही फील्स के ही इज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स व्हिच मोर और लेस से द सेम इन अ पर्टिकुलर अंडर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उन चीजों को थोड़ा कम करें. और जो आपकी अब व्हाट इज नॉन एंगेजमेंट रिलेटेड accomplishments mean? Accomplishments could be covered under holistically under the ambit of accomplishments. Could be related, could be non-related, right? अच्छा, फिर इसी तरह आप जब नीचे आ जाए, मतलब नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करें. अच्छा, अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ था प्रोड्यूस 3 and improved 5 ऑडिट प्रोग्राम्स, थोड़ा सा ऊपर करें, इधर आपको नजर आएगा ऑन द फर्स्ट पेज. हाउ you ये वाला बस ठीक है. Produce 3 and improved 5 audit programs. So how did he improve, or what was the outcome of that improvement? That's your accomplishment, right? क्या आप पहले लेट्स से एक चीज को करने में पहले 10 दिन लग रहे थे, अब उस चीज को करने में शायद 3 दिन लग रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि सिर्फ इम्प्रूव किया है. तो क्या उस इम्प्रूवमेंट से ये 10 से 3 हुआ या 10 ही रहा इम्प्रूवमेंट के बाद भी? आउटकम उसका नहीं नजर आ रहा. सो इस तरह की चीजों को जब आप अपने रेज्यूमे में पढ़ेंगे बार बार, so you'll come across कि मैंने किस तरह से चीजों को लेके चलना है आगे. हाउ कैन आई कंसाइज, हाउ कैन आई combine them together, how can I make them concise, outcome क्या निकला मेरे काम का. Mention the outcome. That is your accomplishment.
ठीक है, फिर नीचे आ जाए, मुतहद नीचे इसको ले आए, एडिशनल स्किल्स एंड ट्रेड्स आपने मेंशन कर दिया। अब उसके नीचे दिस इज अ कंफ्यूजिंग पार्ट, जो ऑडिट एंगेजमेंट्स थी, बिकॉज इज दिस समथिंग एडिशनल, इज इट लिंक्ड ऊपर से ही, और व्हाट इज दिस? थोड़ा सा बेसिकली ये क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑडिट एंगेजमेंट जब हमारा टेन्योर होता है, मतलब हमने 3 साल किसी फर्म में लगाने होते हैं, दिस इज द तो इसमें ट्रेनिंग जो पीरियड यू फर्म, आर टॉकिंग अबाउट, राइट? ये ऐसे, हाँ, ये राइट, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में ही जो है वो मुझे लग रहा है बताना चाह रहे हैं। बट अगर आपने अपना ऊपर कवर कर लिया हुआ है ट्रेनिंग पीरियड, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, राइट? अगर आपने वहां पे कवर कर लिया, यू डोंट हैव टू मेंशन इट सेपरेटली एट द एंड। ये जो इन्होंने लिखा है ना ऑडिट एंगेजमेंट केपीएमजी, ये केपीएमजी की तरफ से इस क्लाइंट पे गए थे और उस क्लाइंट पे बिल्कुल, इन्होंने ये सारे काम किए हैं। तो मुझे लगता है ये वाकई में बहुत हाँ ज्यादा है। ये हाँ, बहुत ज्यादा है। मैंने भी काम किया हुआ है, मैंने 30 क्लाइंट्स पे काम किया हुआ है। तो क्या मैं 30 क्लाइंट्स की डिटेल डालने बैठ गया तो मेरी तो या सीवी यू कैन चलेगी बहुत। मेंशन द, यू कैन मेंशन, अगर आपने मोटे मोटे मेंशन करने हैं, यू कैन मेंशन द नेम, यू कैन मेंशन द सेक्टर, दैट्स हम्म सफिशिएंट। लेकिन हम्म ये नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट हम्म करना है तो प्रोबेबली सबसे नीचे से ऊपर अगर मैं बात करूं, तो जहां हम्म पे आपने क्वालिफिकेशंस अपनी मेंशन की हैं, स्किल्स उसके बाद मेंशन की, क्वालिफिकेशन से ऊपर आपने अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट किया है, तो वहां पे हम्म सबसे पहले आप मेंशन कर दें जो आपने ट्रेनिंग पीरियड किया, उसको ब्रीफली यू टॉक अबाउट द क्लाइंट्स दैट यू वर्कड ऑन, देन यू बिल्ड ऑन टू योर प्रोफेशनल हम्म एक्सपीरियंस, दैट इज हाउ यू हम्म बिल्ड इट। ये एंड में हम्म इट बिकम्स स्लाइटली इररेलेवेंट। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है, इसको जरूरत देने, इसको नहीं है जरूरत। मेरे खुद क्लाइंट्स मैंने उसमें नहीं मेंशन किया हुआ, इस तरह से नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एनीथिंग एल्स सना? नहीं, अली कैन कंटिन्यू। Ali, now it's your turn. Thank you, Sana, for your feedback. Ali, it's your turn. जी थैंक यू सना। सना ने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। लेकिन Hmm. आप मुझसे पूछें व्हाट माय इनर फीलिंग इज, एंड प्लीज पार्डन माय वर्ड्स, मेरे लिए एक स्केरी सीवी है। Yes. There is a lot of information. There is a very long job description. It is more of a job description instead of a CV, and not even a job description. Job description में भी आप अपनी as such activities mention नहीं कर रहे होते, JDs कर रहे होते, responsibilities कर Hmm. रहे होते हैं। सो मेरे ख्याल में रिक्रूटर कभी भी इतनी डिटेल में जाके CV नहीं पढ़ेगा। हायरिंग मैनेजर भी कभी इतनी डिटेल में जाके आपकी हर एक्सपीरियंस के साथ 10 to 15 JDs या असाइनमेंट्स को स्टडी नहीं करेगा। ये 3 to 4 पॉइंट्स में सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस एक्सप्लेन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ऐसे ज़रूरत नहीं है। दैट्स जरूरत है। too much of, for instance, for instance, I actually Hmm. felt I've been bombarded with a lot of information. Hmm. तो वो फिर अब जैसे उसका उसका जो है ना क्रक्स लूज हो जाता है। आप इसमें से जब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो जो कोर है आपकी जेडी का, आपके रोल्स का, वो रहेगा। और जेडी से ज्यादा एम्फोसिस जो है ना, थोड़ा सा सेग्रीगेट करके अचीवमेंट्स पे करें। सो दिस इज मोर लाइक कि आप क्या डिलीवर करते रहे हैं, क्या परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन की टेकअवेज क्या थे, जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी, आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, स्किल्स क्या इंप्रूव हुए थे, यही बातें हमने कल भी की थी। यही सजेशन मेरा आज भी है कि काइंडली अपने, ठीक है सना ने ऊपर मेंशन किया कि देखें इट गो स्ट्रेट अवे ऑन एक्सपीरियंसेस, doesn't talk about objective, doesn't talk about intro as such, that thing is missing। लेकिन हम्म अदर देन दैट, अगर आप टॉप पे अपनी थोड़ा सा पर्सनैलिटी ब्रीफ, थोड़ा सा स्किल सेट, हम्म थोड़ी सी अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो मेंशन हम्म कर दें, तो इसकी a reader or a recruiter would be able to grasp a lot more information than this। मैं इसी की ही बात करूं। जैसे मुताहिद यहीं पे रखिएगा, ये जो इनका नॉन एंगेजमेंट रिलेटेड अकम्प्लिशमेंट्स हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्लाइंट स्पेसिफिक डिटेल्स आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन ऑडिट एंगेजमेंट्स एट द एंड ऑफ रिज्यूमे। मुझे ये इस तरह का तो वैसे सेंटेंस होना ही नहीं चाहिए। ऑब्वियसली हम ये कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं जिधर अपेंडिक्स का जिक्र आ रहा है या उसका जिक्र आ रहा है। तो और ये आपने सारी इंफॉर्मेशन वही दी है जो नीचे दी हुई है कि हमने क्लाइंट्स के आपने ये काम किया। तो समझें कि
ये पॉइंट तो वैसे ही निकल जाएगा, और नीचे से जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है उसमें अगर आप बहुत भी, मेरी सजेशन ये है, बहुत भी मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी मेंशन, मैं सिर्फ क्लाइंट्स के नाम मेंशन किए हैं, उससे ये होता है कि एक इम्पैक्ट आता है कि द कैंडिडेट हैज ए डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस, कि उसने मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑडिट किया हुआ, उसने सर्विस इंडस्ट्री का भी ऑडिट किया हुआ, तो मैंने सिर्फ उनके नेम्स इंक्लूड किए हुए हैं, सिर्फ ओनली नेम्स, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये तो वैसे ही आपका वन पेजर तो वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे कोई ये हम जबरदस्ती रिड्यूस करने की बात नहीं करें, ऑब्वियसली ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। जी अली, एनीथिंग एल्स, और सना इस सीवी के ऊपर कोई बात? जी, वैसे भी इस सीवी के अंदर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वालिटेटिव काफी मेंशन किए हैं। अगर आप खाली क्वांटिटेटिव पे ही चले जाएं तो आपका सीवी अच्छा होगा। आप क्वालिटेटिव एक्सक्लूड कर सकते हैं। हर जेडी में ही इज बीन टॉकिंग अबाउट नंबर्स इन 4 to 5 सेंटेंसेस, तो उसी को रखें आप। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ये लिख रहे हैं लकी टेक्सटाइल में, फर्स्ट establish audit plan on yearly basis and reviewed on quarterly basis ensuring complete execution। फिर आप लिख रहे हैं परफॉर्म कॉम्प्लेक्स, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट में, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स रिस्क requiring high degree of quality and precision। So it's a lot of repetition। आपने जो ऊपर लिख दिया, more likely that's the same thing you are saying। So भाई, let's stick to PKR 600, PKR 100 million, 4 subordinates management, 14 audit reports। Quantitative has a lot more impact in the eyes of organization and recruiter as compared to qualitative। जी सना। जी, एंड रेज्यूमे में जनरली मतलब जैसे इन्होंने लिखा ना, promoted to higher level grade within 1 year, that should come when you're talking to the resume, to the recruiter। It should not be mentioned यहाँ पे as a separate point। एंड जैसे इन्होंने ऊपर लिखा है कि organize 6 training sessions on technical topics and behavioral management in 8 months। इससे क्या इम्प्रूवमेंट आई? जो इम्प्रूवमेंट आई वो इनकी अकम्पलिशमेंट है। बिल्कुल इस तरह लिंक करना चाहिए, इस तरह से लिंक करना चाहिए। और उसके साथ बस आखिरी बात जो फिर हम इस सीवी को कंक्लूड कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइएगा अली, कुछ मिक्स सा मुझे लग रहा है कि हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जेडीज को हमने हर चीज को अकम्पलिशमेंट का नाम दे दिया है। मुझे ये चीज आप देखें ना, यहाँ पे वो कोई काम भी कर रहे हैं तो वो भी अकम्पलिशमेंट है, हालांकि वो तो उनकी जेडी का पार्ट है। हमने सारी चीजों को ये नाम दे दिया, क्या ये इसी तरह ही है? अचीवमेंट्स तो या अकम्पलिशमेंट्स तो मेरा ख्याल है कि हमारा वो एक सेपरेट सेक्शन नहीं था। नहीं अरसलान, देखें मैं वही आपसे बात कर रहा था कि आपने कंटेंट सारे कवर करने हैं। एज सच कोई सीवी का फॉर्मेट नहीं है। इफ दिस गाय ठीक है। हैज टू मच स्टोरी टू टेल, if he is an extraordinary gentleman, if he has so much to tell to a recruiter or the organization, then this format is fine, there's nothing wrong with this। लेकिन ठीक। सिर्फ ये है कि that's too much information to comprehend। डन डन, थैंक यू अली, थैंक यू सना। नेक्स्ट सीवी मुताहिद, हरी अप, we have to evaluate maximum CVs। Burhanuddin, professional accountant and in a tabular format CV। जी सना, नाउ मेरा ख्याल है सना आपकी बारी है ना इस बार फर्स्ट I इवैल्यूएशन think की। it's Ali's turn, or I अच्छा can start whichever way is fine। मुझे थोड़ा सा स्लो करके चले, क्योंकि अभी मैं पढ़ रही थी कि ऊपर उन्होंने क्या लिखा है। मुताहिद ये 5 पेजेस की सीवी है। आराम Yeah, आराम it's a से। very long CV। अच्छा, फिर थोड़ा सा नीचे है। सना शिराज कह रही है फिर इसके बाद क्या हुआ? Then come down again, आहिस्ता आहिस्ता करके करियर हाईलाइट से नीचे आ जाए। Wow, this is a huge CV। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, आ जाए, आ जाए नीचे नीचे, आ जाए, आ जाए। बिल्कुल। शिंटेड। ओके, नीचे आए।
ओके, नीचे आ जाए। प्रैक्टिकल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशन। मुताहिद ये ओके, बताएगा इनका टोटल एक्सपीरियंस कितना है? मुताहिद आपके पास तो सीवी है, देखिएगा इनका टोटल एक्सपीरियंस। ये पूरा एक दफा स्क्रॉल डाउन कर लें फिर उसके बाद। डेटा मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। ओ अच्छा, नीचे भी है जी जी। टेक्निकल। एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि मुझे इंटरव्यू में वो बुला ही ना, सारा कुछ यहीं से देके यहीं पे फैसला करके मुझे ऑफर लेटर भेज दें। अच्छा, आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिकमेंडेशन की सीवी में देयर इज नो नीड। हम्म। अगर मैं नीचे से ही ऊपर चलूं, आई थिंक टेक्निकल जो स्किल नॉलेज है उसमें भी अलॉट इज मेंशन, राइट? एमएस ऑफिस सूट का भी अगर आप देखें फर्दर बाइफर्केशन है। सो other courses, then Excel courses, then audit courses, then training courses. You should highlight very key training courses जो आपने किए हुए हैं, right? Which shape you up as a professional. Qualifications आपने mention जरूर किए हैं, but MCOM you've done from where? When did you do it? That's not mentioned. यस, What यही is हमने डिस्कस किया था। mathematics, right? हम्म। Mathematics is ये what कौन से मतलब क्वालिफिकेशन है? हाँ। हाँ, exactly. And then you have to see कि CAT mention करना जरूरी है। Advanced Diploma in Accounting and Business, is it relevant to mention? Key achievements अच्छा का जी सना, सॉरी टू कट यू, इसमें मैं यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा सेक्शन मेरे से रेलेवेंट आगे रुके मुताहिद। जी जी ये जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं यार, IFRS एंड IAS कोर्स, you have a huge experience, like you have done 5 to 6 jobs. You don't need to mention like now, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ लिए हैं 17 18, ये सारी का सारा जो है वो इररिलेवेंट है, सारा का सारा। सॉरी, मतलब ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए बैठे हुए हैं, हम आपको सिर्फ सजेशंस दे रहे हैं। मतलब ये सारे फाइल्स एक प्रोफेशनल, हाँ न्यूली कैंडिडेट हो तो मैं उसको कह सकता हूँ कि वो मेंशन कर दे, लेकिन आपने मैंने देखा सीवी में आपने शायद 5 to 6 जॉब्स मतलब आपने स्विच की हुई है, आपका शायद एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको खत्म करने की जरूरत है। हाँ, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स है और क्या है, एमकॉम है, ये भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेंशन लाइक यू आर ACCA, मतलब इसके बाद आपको शायद कैट करना चाहें तो आप करते हैं, इसके अलावा नहीं। नाउ सना कैरी ऑन, मेरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। जी। Then I would suggest there is a lot of stuff in the CV about each and every particular area. I think इसको concise कर सकते हैं अगर आपकी achievements, you really have to see how you're writing your responsibilities also. At times your responsibilities lead to your achievements as well. So you really have to see कि वो क्या overlap तो नहीं हो रहा, because obviously मैं एक एक sentence में से नहीं पढ़ सकती, but जो आपका first page पे था, जो आपके career highlights के बारे में बात कर रहा है, and उस first page में भी बहुत ज़्यादा information है, so you really need to pick very key and important aspects of the job that you want to share, because trust me, ये 3 से 5 पेजेस का जो आपका इतना बड़ा 5 पेजेस का रेज्यूमे है, ये सेकंड पेज पे जाके शायद थोड़ा सा ना बंदा, like the person will have to take a break. That should not happen. Your CV should be such के एक रिक्रूटर को एक ग्लांस में पता चल जाए कि आपने क्या किन किन की चीजों पे काम किया हुआ है. So other special tasks performed, if they're not quantifiable, or if there's something which are, you know, not leading to any particular thing, maybe operational administrative काम है, you don't have to mention it, right? So try rewriting your resume in a way जहां पे आपकी key responsibilities reflect हो रही हैं. अब यहाँ पे देखें सना, एक मिनट बस, देखें अब यहाँ पे अली और सना की बात कितनी एंडोर्स हो रही है। अली ने भी कल ये बात की, आज हमने सेशन स्टार्ट करने से पहले भी बात की, सना ने भी बात की। वही बात है कि फॉर्मेट, अब आपका जो फॉर्मेट है टेबुलर, अगर आप इसको सिंपल फॉर्मेट में ले आए ना, तो मेरे मुताबिक आपकी सीवी जो है वो 5 पेज से ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके 3 पेज पे चली जाएगी। अब आपके इस टेबुलर फॉर्मेट में आपने एक बॉर्डर लगाया, फिर आपने सेकंड बॉर्डर लगाया, जिसकी वजह से आप देखें आप कितनी स्पेस को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी सीवी कितने पेजेस पे चलेगी? 5 पेजेस पे। मुझे बताएं इस टेबुलर फॉर्मेट का हमें किस एम्प्लॉयर को क्या, किस चीज का बेनिफिट है? इस फॉर्मेट से क्या हो रहा है? आपकी सीवी ऑटोमेटिकली अगर आप सिंपल फॉर्मेट में लें और इस स्पेस जो हमने वेस्ट की है इसको हम रेडी करें, यूटिलाइज करें, तो शायद आपकी सीवी ऑटोमेटिकली 3 पेजेस पे आ जाएगी। तो हमें इस तरह के फॉर्मेट से, आप खुद देखें ना,
लेकिन अब हमें कुछ क्रिएटिविटी की जरूरत है। आप लोग सेशंस ले रहे हैं नाउ, अब आपके माइंड के अंदर एक बल्ब जल जाना चाहिए कि नाउ हमने अब क्या करना, ठीक है। सो ये आपके सामने है। इस फॉर्मेट से मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली जो सना, अब अपना फीडबैक कंटिन्यू करें, आफ्टरवर्ड्स फिर हम अली से फीडबैक लेते हैं। ठीक है, I think largely तो Arsalan, I've stated that obviously this person he needs to revisit जो भी इन्होंने responsibilities लिखी हैं उनको थोड़ा concise करने की जरूरत है। वो responsibilities जो are बिल्कुल generic, he needs to take it out. Career highlights अगर इन्होंने at all mention करनी है and he wants to really emphasize on something big that he's done, it should maximum be 3 bullets, that is 3 लाइनें, not 3 paragraphs Yes. at max. ठीक है, and then there is no need of listing down all the key skills. अब बुक कीपिंग भी इसमें है यार, मतलब वही बात है, आपके एक्सपीरियंस के साथ ये वाला की स्किल मैच नहीं करता कि आपको बुक कीपिंग आपको करना आती है। नाउ And आपको again, आप जी कैरी ऑन। जी, and Arsalan again इस resume में भी there is a lot of focus on, मैं जब की स्किल्स देखती हूँ, की स्किल्स में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स आ रही हैं। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स नहीं आ रही, जैसे आपने भी लास्ट भी डिस्कस किया। हाँ, right. Correct. So for an organization and a recruiter, it's very important to see कि from the look of the CV also कि क्या that person, whether that person fits well with the organization or not. Especially मैं उन लोगों को थोड़ा सा I would just suggest, it's up to, obviously it's to each his own, I would just suggest कि आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो है, try looking up their website, see what they stand for, see what they're asking. क्या आपका रेज्यूमे, जो आप अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं, वो मैच करता है from what they're looking, what they reflect, what values they have. Try incorporating their values in your resumes to show कि जी आप मैच करते हैं what they stand, what the organization stands for. इसको मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, जिस तरह से सना ने कहा कि ये हमने यही कि जो भी आपको जॉब पोस्ट आती है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको गूगल करें, उनकी वेबसाइट्स को देखें, उनके रिव्यूज को देखें, उधर जो इंफॉर्मेशन है, उनकी जो पोजीशन है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि what type of candidate employer wants. सो आप उसके हवाले से अपनी सीवी को बनाएं, तो जो वो चाहता है वो आप अपनी सीवी में ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट करें। ऑब्वियसली वो कुछ फेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू में आपसे पूछ रहे और आपको ना हो तो वो भी एक बैड इम्पैक्ट जाता है। सो आप वो सारी इंफॉर्मेशन को उस तरह से अलाइन करें, तो देखें इट विल बी अ गुड इम्पैक्ट इन फ्यूचर। आपको फायदा होगा अगर आप फ्यूचर में इस तरह सीवी बना के अप्लाई करते हैं। जी, नाउ अब हम अली की तरफ आते हैं। अली, आपका फीडबैक इसके ऊपर क्या है? You guys have discussed in detail. Not much to say except the guy has 7-year experience and the CV shouldn't go beyond 2 pages. अगर इस perspective के साथ the guy, if the gentleman, if he'll be redoing his CV with this perception, automatically इसको पता चल जाएगा कि मैंने इसमें से क्या exclude करना है। और फिर वही बात है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी इसके अंदर हमें नज़र नहीं आ रही है। सो ये हमें इश्यूज हमारे सेक्टर में भी कभी नज़र आता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी मेरे पास इस तरह के सीवीज आते हैं जिसके अंदर पीपल टेंड टू राइट अ लॉट ऑफ नॉन मेजरेबल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आई वाज अ टॉप परफॉर्मर, I overachieved my targets. So I always tell them, KG, if you are a top performer, then you'll have to mention for how many years, how many times, and and if you overachieve your targets, then by what percent you did it. You were like on 120%, 130% or something. So And इस how तरह did you की achieve them? जी 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 सो इस तरह की चीजें मेंशन करने की जरूरत है। दिस CV if can be brought on 2 pages, automatically redundancy और unnecessary information इसमें से exclude हो जाएगी। Again, there is too much to catch.
It is even scary, yeah, more scary than the previous one. चले, अब हमारा बेंचमार्क ये हो गया, डन। नेक्स्ट मुताहिद सीवी करें जी। सबसे पहले जी मुझे तो ये सीवी पे ही प्रॉब्लम लग रही है। सीवी का नाम क्या है जी? डीएस, जिस नाम से फाइल सेव किया हुआ। तो अच्छा चलें, ये भी मुझे बताइएगा, बहुत शायद पेटी क्वेश्चन होगा। हम सीवी की जो फाइल है, मैंने उसका नाम सेव होते हुए देखा है, मेरे पास सीवी आती है जैसे ये दुरे शहवार वर्जन 1, सीवी दुरे शहवार फाइनल वर्जन 4। मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली वेरी वेरी जेनेरिक क्वेश्चन, सीवी का नाम जो फाइल है वो किस नाम से सेव करनी चाहिए? अली, आपसे मेरा ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल में बेस्ट चीज तो ये है कि आप अपने ही नाम से उसको सेव करें और उसके अंदर एब्रीविएशंस यूज ना करें। उसकी वजह ये है कि जब भी रिक्रूटर के पास बल्क में सीवी आते हैं तो सीवी फाइल नेम से आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे टेंड टू कॉपी देयर सीवीज या किसी कोलीग या फ्रेंड का सीवी का पैटर्न लेके उसमें चेंजेस कर लेते हैं। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक जो मैं आजकल देख रहा हूँ, जब आप अपनी वर्ड फाइल को पीडीएफ में स्टोर करते हैं तो वो ओरिजिनल सीवी राइटर का नाम पिक कर लेता है। बिल्कुल ऐसे, यस, इसका ऑथर का। मतलब है अगर अरसलान ऑथर का, इसका मतलब है अरसलान अगर मैंने आपका सीवी लिया कि यार देखो जरा मुझे सीवी दे दो, मुझे जल्दी से एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, आई डोंट हैव टाइम, तो मैं उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स कर लूंगा। तो अब वर्ड में बनाने के बाद जब उसको सेव करूंगा पीडीएफ में जाके तो वो अरसलान के नाम से उसको ऑटो सेव करेगा। तो ये जरूरी है कि आप अगर इस तरह करें तो पहले आप वर्ड और आप इसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। पीडीएफ आपको उसका ऑथर का नाम भी रेक्टिफाई नहीं करने देगा। तो एक तो ये भी चीज जरूरी है कि जब आप किसी का वर्ड फॉर्मेट कॉपी करें तो उसको सारे के सारे डाटा को कॉपी कर लें न्यू वर्ड फाइल में। उसके बाद आप उसको करेंगे तो आप ऑथर ऑटो पिक होंगे उसके। ठीक है, ठीक है। चले मुताहिद, इसको स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल, शुरू से स्क्रॉल अप करें पहले कंप्लीट जी। अब आराम से आप स्क्रॉल डाउन करें जी। अली, आई थिंक अब ये फर्स्ट रन किसकी है जी? मैं भूल गया हूँ। आई थिंक अली की है जी। जी बस यहीं पे रुकिएगा। देखिए अगेन, ये मेरे ख्याल में एक फ्रेश कैंडिडेट का सीवी है। इट शुडंट गो बियॉन्ड 1 पेज। दैट इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ये हम कल भी बात करते रहे हैं, आज भी करते रहे हैं, सो आई एम रीइटरेटिंग। सेकेंडली, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, द मार्केट इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग आपका मैट्रिक और उसके बाद इंटरमीडिएट। सो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और योर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस। सो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से 2011-13 की जो आपकी ये सर्टिफिकेट है मैट्रिक का और उसके बाद इंटरमीडिएट है, आप इसको एक्सक्लूड कर दें। कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स में इतना ज़्यादा इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, इफ द सीवी विल बी रीडन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग इट टू 1 पेज, ऑटोमेटिकली द पर्सन वुड नो व्हाट टू एक्सक्लूड। ठीक है जी। और फिर वही चीज के सीवी के कंटेंट्स के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक अबाउट योर ऑब्जेक्टिव इन 2 to 3 लाइंस, नॉट ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन you should tell about your even if you are fresh, you should talk about your skills and strengths, and then you can start talking about your experiences, your internships and your academic certificates, your qualification। ठीक है जी। जी, so वो सब चीजें उस तरह से मेंशन की जा सकती हैं। ठीक जी सना। सना, सॉरी, हाँ जी। सो अरसलान, आई वुड से कि जो
अली ने कहा है दैट्स वेरी रेलेवेंट. इसके अंदर थोड़ा फॉर्मेटिंग सही करने की जरूरत है. जो इन्होंने अलबरका में की हुई है एक्टिविटीज, उसके अंदर तो इन्होंने शी हैज क्लियरली स्टेटेड व्हाट शी इज डन. इसको अगर बुलेट फॉर्मेट में कर देंगी ज्यादा बेहतर होएगा. एबट लैब्स में इन्होंने एज एन इंटर्नी क्या किया था, दैट्स मिसिंग. अगेन स्कूल में कंप्लायंस ऑफिसर थी, उसको ब्रीफ करें, ठीक है. And software hands-on skills, communication skills, she need to define a section for skills where she can write all this. And professional qualifications इन्होंने अपनी mention कर दी हैं. अगर diploma in accounting, again Arsalan, you would be better person to comment. I don't think it's relevant, but I think if she's an ACC affiliate, that should be sufficient. नीचे आ जाए. Formal education, I want to see क्या है. मुझे थोड़ा सा नीचे करें. I think bachelor's of commerce is more than enough for her to mention. Secondary, higher secondary, there is no need for that. Conferences and workshop participation में, that seems fine. Yeah, that's okay. Conferences and workshops are fine. But it should be a smaller resume, considering it's fresh graduate. ठीक है. Thank you, Sana. Thank you. नकाश हुसैन, इनकी सीवी शायद हमने कल रिव्यू की थी, आज जिन्होंने रीड्राफ्ट की है ऑब्वियसली, और इसको देख लेते हैं. करियर ऑब्जेक्टिव है, उसी तरह प्रोफेशनल समरी है. सना, नाउ इट्स योर टर्न. जी. मुतहिद, एक सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट दोबारा दिखाएं. ओके, नीचे आ जाए. अलबरका बैंक में है. एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, कंपाइलेशन. It's actually not a bad resume, I would say. ठीक है. I think कि इन्होंने concise किए हैं चीजें. That's good on his part. I think इनका जो career objective और professional summary है, थोड़ा सा that's overlapping, right? When he starts from the top, मुतहिद start पे लेके जाए, बिल्कुल top पे. So professional summary में he has added his skills, so maybe he can talk about this section which reflects कि ये जो भी इनके pointers हैं, ये इनकी skill set में कैसे fall करते हैं. And जो career objective है, उसके अंदर he can mix his ये multi-skilled accounting and finance professional with 4 years of experience. That should go there. Career objective and professional summary more or less can be used interchangeably, right? Overlap नहीं हो जाना चाहिए दोनों का. ठीक है. So that's something he can work on. Then Microsoft Office should be okay. Academic writing I don't think is relevant. जब आप communication, आप verbal and written communication कर सकते हैं combined. When you're saying academic writing, maybe you can say good verbal and written communication or strong verbal and written communication. You can reword it like that. Collaborative and teamwork आ गया. Meticulous attention to detail, that's fine. Fine. So he's only been in Alberca. This is, I believe, his first job, right? Yes, ऐसे ही इसी तरह ही लग रहा है. बाकी तो वो नीचे टीचर्स है ना. Major assignment should not be there at the end with a separate date, because that is a bit confusing. ठीक है. So अगर इन्होंने ये लिखनी भी है जो most recent है, it should come at the top as most recent, not at the bottom. And internships, I don't think he needs to mention other work experience. ठीक है. जी. Overall, CV is good as compared to previous ones, obviously, but हम अली से भी फीडबैक ले लेते हैं. अली, obviously आप भी यकीनन कुछ ऐड करना चाहेंगे. पर CV is apparently good as compared to previous one. जी, ये CV कल 2 पेजेस पे था, आई गेस, और आज 1 सिंगल पेज रिड्यूस हुआ है. सो
दूसरा जरा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सना ने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे वाकई कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है कि सितंबर 2019 एंड देन 17 18 एंड देन फ्रॉम 18 टू प्रेजेंट इसकी क्या डिफरेंशिएशन है। सो इफ इज बीन ओनली टू अलबरका बैंक, तो इस सारे को एक ही सेक्शन में मेंशन करना चाहिए। अदर वर्क एक्सपीरियंस देखें, अदर वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ उस सिचुएशन में देना चाहिए जब आपके पास 5 से 6 FTE एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट्स हम बोलते हैं। उसके साथ अगर आप कोई और जॉब्स या इंटर्नशिप्स मेंशन करना चाहते हैं तो आप सेक्शन सेपरेट कर दें, लेकिन आपकी तो जॉब ही एक है। आप इतनी सेपरेट हेडिंग विद अ सेपरेट लाइनर विद सेपरेट सेक्शन क्यों बना रहे हैं उसको? आप उसको सिंपली अपनी इंटर्नशिप को मेंशन कर दें अपने एक्सपीरियंस के साथ ही नीचे। इसको इतना सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये है कि ओवरऑल दैट्स ओके, इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट सिंस यस्टरडे। अवार्ड्स एंड एक्टिविटीज भी अच्छी कवर हो गई हैं। अली, इसमें एक मेरा क्वेश्चन था, मुझे जरा स्क्रॉल डाउन करना। एक्चुअली नकाश जो है ना, मैं इसमें समझता हूँ वो उन्होंने ये क्यों मेंशन किया है, फाइनेंस ट्रेनिंग ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर। बेसिकली इनकी फर्स्ट जॉब है, और अगर वो डायरेक्ट शो करते हैं कि वो असिस्टेंट मैनेजर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये समटाइम्स उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी लिखा है कि एम्प्लॉयर को फीलर आए कि जी मैंने इस तरह फिनांस ट्रेनिंग ऑफिसर काम किया था, उसके बाद विद इन अ ईयर आई गॉट दी प्रमोशन एंड ही बिकेम दी असिस्टेंट मैनेजर OG2। तो ऑब्वियसली फर्स्ट जॉब है, तो उसने उन्होंने वो डेजिग्नेशंस इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। डू यू थिंक कि इस तरह से भी ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे असिस्टेंट मैनेजर जो नहीं नहीं, करंट पोजीशन है? ये ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सॉरी अरसलान, दैट्स ओके। अगर वो पहले फाइनेंस ट्रेनिंग ऑफिसर थे, उसके बाद एक परमानेंट असाइनमेंट उनको मिल गया, दैट्स फाइन। लेकिन ये मेजर असाइनमेंट वाला पोर्शन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखें, आप अपना एक टेनर मेंशन करते हैं 17 टू 18 देन 18 ऑनवर्ड्स, लेकिन फिर उसके बाद नीचे आप एक सितंबर 2019 की असाइनमेंट मेंशन करते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजिंग है, यस आप ऑब्वियसली इसको देयर इज सेपरेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऊपर ले जाओ। और अगर ये आपकी अचीवमेंट है तो एक अचीवमेंट का अचीवमेंट की हेडिंग सेपरेट दे दें। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है अली, वेरी अरसलान, गुड। इसमें एक ऑब्जर्वेशन है। सो जब इन्होंने अलबरका का लिखा है ना टेन्योर, सो अलबरका का टेन्योर इनका है 17 से प्रेजेंट, राइट? सो यस, बिल्कुल अलबरका से ऐसे। आगे नहीं होनी चाहिए। वो डेट आई बिलीव उनकी है असिस्टेंट मैनेजर की। सो ही नीड्स टू उस डेट को नीचे ले आए और अलबरका के आगे पूरा टेन्योर लिखे ना, बिकॉज ही इज स्टिल देयर सिंस अप्रैल 2017। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, वाकई में बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। यू बोथ आर राइट, बिल्कुल इसी तरह। जी बिल्कुल। नेक्स्ट टीवी की तरफ आ जाते हैं। एंड नाउ सना, मोहम्मद अजीम रिज्यूमे है ये उनकी, और गेन इसमें। ठीक। अच्छा, सो थोड़ा सा स्टार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसका रेज्यूमे का। मुझे ऊपर लेके सो द ईमेल एड्रेस इज नॉट एट ऑल रीडेबल, या शायद मुझे नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल, कल भी यही बात मैं कह रहा था कि जब हम ये लेफ्ट साइड के ऊपर यूं ले आते हैं, अब जैसे इन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ब्लैक में लिखा हुआ, जब कोई एम्प्लॉयर प्रिंट आउट लेगा तो शायद ये नजर नहीं आएगा। हाँ, तो आपने इस exactly. पॉइंट ऑफ व्यू से Yeah, and it should be like Muhammad is in one color and Azim is in different color. I think he can do lesser with the graphics and the fonts. Font एक रखें अपने पूरे resume में. It should be one font. And आपका जो color है वो भी एक ही होना चाहिए throughout your resume. फिर इसके बाद आप प्रोफेशनल प्रोफाइल से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस में। सो एक्सपीरियंसेस में जो टॉप 2 एक्सपीरियंसेस हैं उनकी कोई डिटेल्स नहीं है एज सच। देन यू स्टार्ट नीचे वाला एक्सपीरियंस विच इज चीफ अकाउंटेंट का, बिल्कुल आखिरी वाला, उसमें there are details of job duties and responsibilities, preparation of yearly accounts for organization, preparation of various MIS reports for financial analysis,
नीचे आ जाए। स्किल्स बहुत सारी, अगेन मैं कहूंगी मेंशन की हुई, कोर स्किल्स मेंशन करें नीचे। बहुत ज्यादा। बहुत सारी स्किल्स हैं। देन yeah, Google Chrome, you don't have to write as a skill, or MS Outlook. You can just say, Microsoft Office. When you say it covers everything, Excel, Word, PowerPoint. Interests are very optional. Interests are mainly for people who are very fresh into their careers. So I think usme, he can do away with the interests. Again, I would say लैंग्वेजेस भी ठीक है, ठीक है, languages are लैंग्वेजेस। fine. Languages are fine. Language he can mention. I think जब इनका शुरू का experience start होता है, that's what is missing. I don't know what he's done in the top most relevant roles. I know what he's done 5-6 साल पहले, but I don't know what he's doing now. So that is one of the biggest things जो कि नहीं इसमें mention. Then academic qualification आ गया, इन्होंने लिखा Bachelors of Arts majors with Bachelors of Arts majors with economic education and Arabic. BZU से किया हुआ है, इसी से इन्होंने किया। लास्ट पेपर रिजल्ट वेटिंग 2013 diploma. Since he has a lot of experience, I don't think he should be mentioning diploma. What do you think, Arsalan? डिप्लोमा की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, आपकी अपर क्वालिफिकेशन अब मुकम्मल हो चुकी है। अभी एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं है, तो अभी इनके कुछ पेपर के रिजल्ट्स पेंडिंग है, तो फिर दैट्स व्हाई ही नीड्स टू मेंशन डिप्लोमा। अदरवाइज इफ क्वालिफाई करता है immediate availability is not needed in the resume. Immediate availability आप निकाल सकते हैं आराम से। So accounting functions with budgeting, variance analysis, finalization, then understanding in formulating budgets for projects. I think जब आपने budgeting एक जगह mention कर दी है, you don't have to mention it again. So ideally he can combine his object, again I would say professional profile को objective को थोड़ा combine करके make it one crisp, solid to the point profile, which should cover what you're looking for. एंड अपनी एक्सपीरियंसेस को डिटेल में बताएं, जो मोस्ट रिसेंट है आप उसमें क्या करें, नीचे वालों को थोड़ा कम करें, ऊपर वालों पे ज्यादा एम्फेसिस डालें, अपनी स्किल्स को थोड़ा कम करें। ठीक है, इट्स अ 2-page resume, but it needs formatting. I mean, the formatting, the font, your text is a bit out. इसको so rephrase, you have to rephrase certain sentences, too many commas, too many words used together. थोड़ा सा इनको आपको बाइफरकेट करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो है लोगोस को भी मतलब ये खास तौर पे आप एसीसी का लोगो ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं, ये कल हारून ने इसके ऊपर गाइडेंस भी दी थी। सो मैं अगर अपनी सीवी में बात करूं तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है और मैंने इसमें अपने लोगोस मेंशन नहीं किए हुए हैं, ठीक है। सो मुझे भी यही लगता है कि शायद देखिए हर एक अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, बट आई वुड बिलीव के मतलब लोगोस मेंशन मैं नहीं करता, मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा। बाकी वही बात है, इस सीवी के अंदर वही प्रोफेशनल प्रोफाइल है और फिर नीचे ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इसको हम एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इमीडिएट अवेलेबिलिटी, वेरी राइट। दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था कि लेफ्ट साइड के अगर आप इसको ब्लू बैकग्राउंड करें तो आपका फॉन्ट वाइट होना चाहिए या कुछ भी ऐसा कि जो रीडेबल हो। अब जब वो एम्प्लॉयर प्रिंट आउट लेगा तो ये आपका ना ईमेल एड्रेस नजर आएगा, ना ये जितना भी ब्लैक में लिखा हुआ है वो कुछ भी नजर नहीं आएगा। और इसके साथ साथ जो आपकी देखें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जेडीज जो आप मेंशन करते हैं ना, काइंडली आप टॉप जो आपकी जेडीज रही है ना, हाई लेवल जेडीज, आप उसको मेंशन किया करें। हम उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि हम पहले ऑफिस गए, हम वो भी मेंशन कर देते हैं, हम फिर जाके बैठे हमने वो भी मेंशन कर दिया, फिर हमने लैपटॉप ऑन किया तो वो भी जेडी के तौर पे मेंशन कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि टॉप 5-6 जेडीज या 3 जेडीज जो आपकी हैं उसको मेंशन करें, और फिर बाकी जेडीज को अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि, तो आप 3 से 4 जेडीज जो आपकी बेसिक है उसको आप कंबाइन करके कन्वर्ट इनटू 1 जेडी और देन उसको प्रेजेंट कर दें।
सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आपने अपनी सीवी को खूबसूरत बनाना, प्रोफेशनल बनाना है। मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि जब एक एम्प्लॉयर देखे तो उसको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उसको हर चीज़ सेग्रीगेटेड, क्लियर और क्लैरिटी के साथ उसको नजर आए। बहरहाल फीडबैक जो है हमारा अभी अली से रहता है, हम अली को कहते हैं। अली प्लीज इस सीवी के ऊपर आप अपना फीडबैक जरूर दें। She won't take too long. Look and feel of the CV is not professional, like you guys said. Like Sana said, the guy needs to do less with the graphics. Would definitely agree with this. Too many colors, logos, different fonts, lot of information. Objective से ऊपर मुझे नहीं पता क्या heading आ रही है, but like you said, it can be converted into professional profile. So you know again left side पे एक different information चल रही है, right side पे different चल रही है। फिर आप जो अपना existing role perform कर रहे हैं उसकी job description आपने explain नहीं की है, अपने previous roles ही कर दी है। Recruiter, hiring manager, organization, they are always interested in knowing what are you exactly doing right now, because that's your latest experience, not what you have done in the past. To be honest, in the past we normally look just on the organizations and the roles you held. We normally don't do into a lot of detail of what job descriptions did you have and what achievements did you have. So most important thing is your current job description and the current role and the current achievements. उसके बाद Thank you. again duties and आगे responsibilities बहुत डिटेल में है, इसको थोड़ा सा बहुत reduce detail करें please. Again, if the CV will be redone from the perspective of bringing into one page, automatically it will be a good CV. ठीक है जी। अली, anything else? That's it. That's it. Yeah. Thank you, Ali and Sana. Please, Mutahid, next CV. साइमा अब्दुल वाहिद। अली, अगेन नाउ इट्स योर टर्न। आप इसको देखें और फिर इसको हमें गाइड करें इसके ऊपर। पार्टिसिपेंट्स, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। हम मैक्सिमम सीवीज को कोशिश करेंगे आज एवेल्युएट कराएं थ्रू आवर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स वजीहा, सॉरी, सना शराज एंड अली मंसूर। सना शराज ने जो है वो फातिमा ग्रुप के साथ रही हुई हैं, वो उसके साथ साथ डिवाइन ग्रुप में रही हुई हैं, उसके साथ साथ हली फूड्स में भी उन्होंने काम किया है। अली हैं, वो स्टार्ट से मतलब अल्फला के साथ रहे हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम कर रहे हैं। सो हमारे पास बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जी अली। देखिए ये मेरे ख्याल में ओवरऑल द सीवी इज फाइन, नथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस। ये बीएससी ऑनर्स अप्लाइड अकाउंटिंग ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी तो प्रॉब्ली ऑनरेरी डिग्री होती है इसी। यस, ये जरूर मेंशन करना चाहिए बिकॉज इट गेट्स रियली कंफ्यूजिंग कि आपने एक ही साल के अंदर अपना ACCA कंप्लीट किया और नेक्स्ट ईयर थीसिस सबमिट करके यू बिकेम यू नो ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। वो ऑनरेरी को जरूर मेंशन कर दें। बाकी ये है कि एक्सपीरियंसेस 4 to 5 लाइंस में बताए गए हैं। अगेन अगर आप इनको क्वांटिफाई कर सकें दैट वुड जनरेट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। उसके बाद स्किल्स में Oracle, MS Office, टाइम मैनेजमेंट, टीम प्लेयर, अटेंशन टू डिटेल्स, ओके दैट्स फाइन। लैंग्वेजेस इंग्लिश फ्लुएंट, IELTS 7 बैंड्स, ओके। उर्दू फ्लुएंट। लोकेशन जी अली, लोकेशन मेरे ख्याल में ये रेजिडेंशियल एड्रेस है प्रॉब्ली, राइट? यस, इसमें इसको नहीं, ये G11 is a block, basically is a, I think is a area, is a street type, मतलब not a या complete address. बेसिकली कॉन्टेक्ट एड्रेस, so वो लोकेशन तो नहीं हो सकती बिकॉज द पर्सन इज नॉट अ माइलस्टोन और अ बिल्डिंग। सो उसको थोड़ा रीडू कर ले कर सकते हैं। जी। volunteer work and certification, advanced diploma in accounting, professional certification in web designing, steer your career। अच्छा ये CV 1 पेज पे, दैट्स अ गुड थिंग। तो वो एक पेज को यूटिलाइज करने के लिए अगर ये चीजें मेंशन कर दी है तो ठीक है, बट इफ Yes. the experience expands and Saima wants to expand it on 2 pages, I will still suggest कि आप अपनी certifications reduce करके bullets में इसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिएगा स्पेस को। यू डोंट नीड टू गो टू 2 pages until unless you have almost 7 to 10 years of experience. So that's a future advice. Otherwise, space has been properly utilized. Skills have been mentioned.
जेडी को थोड़ा क्वांटिफाई करने की जरूरत है, लाइक आई सेड अर्लियर, एंड इट्स फाइन, बाकी ठीक है। ठीक है, थैंक यू अली। चलें जी, हमारे कैंडिडेट जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं। और सना, वेट अ सेकंड मुताहिद, सना एनी फीडबैक फॉर दिस नहीं, आई सीवी? थिंक जी, आई थिंक अली ने काफी कुछ कवर कर लिया है। मैं सिर्फ इनको ये कहूंगी कि शी डजंट हैव टू मेंशन एवरीथिंग इन द रिज्यूमे एज फार एज वही बात है सर्टिफिकेशंस आर कंसर्न, जो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एजुकेशन के अंडर अगर लिख दिया है कि शी हैज डन अ डिप्लोमा, वो एक सर्टिफिकेशन में से भी रिमूव हो सकता है बिकॉज वो एजुकेशन में कवर हो चुका है। इसी तरह स्किल्स में जॉब रोटेशन इज नॉट अ स्किल दैट शुड बी टेकन आउट, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स ठीक है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक इन्होंने लिखा हुआ है। लोकेशन अगेन आई वुड से इज ऑप्शनल, आई देयर इज नो नीड। बाकी कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आपका रेलेवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। जो इन्होंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस इंटर्न और ये चीजें लिखी हुई हैं, आई थिंक इट्स इन दिस सेम मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ही थी ये सिंस सितंबर 2017, राइट? 17 years, बिल्कुल ऐसे ही है जी। सो आई थिंक वहां पे अपना टोटल टेन्योर डाल दें उसके आगे, सो दैट वुड बी हेल्पफुल। यस, मेक इट अ बिट क्वांटिफाइबल इन द सेंस कि कोई ऐसे काम किया जिसका सब्सिक्वेंट रिजल्ट कुछ बेहतर हुआ, कोई नंबर्स डाल दें इसके अंदर, वुड बी बेटर। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन वेब डिजाइनिंग ठीक है, जैसे भी एडवांस डिप्लोमा है ये यहाँ से निकाल दें क्योंकि ये ऑलरेडी कवर कर चुकी हुई है। इंटरनेशनल ठीक है। कंप्यूटर ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेशन, अच्छा, it's a driving license, right? यस, ये नहीं नहीं, कंप्यूटर ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल कंप्यूटर ड्राइविंग, आई थिंक ये इंटरनेशनल लाइसेंस की ही बात हो रही है। That बिल्कुल, अगर ये Sana, इस you तरह can से है take तो it. देन डोंट Saima, you नीड टू can take it मेंशन। out. You can take it out. ठीक है, बाकी so you can, you know, again वही बात है कि आप कंसाइज कर सकती हैं अपनी वॉलंटियर वर्क एंड सर्टिफिकेशन को, एंड एक दफा दोबारा से अपनी सारी चीजें पढ़ लें। Are you saying exactly what you want to say? Is that reflecting in your resume? तो एक पेज पे I think it will look fine. ठीक है, थैंक यू सर, अच्छा, एक और थैंक यू। चीज मैं यहाँ हाँ पे ऐड बताइए। करना चाहूंगा फॉर ऑल द सीवीज। देखिए, जो एसेंस है सीवी का, दैट शुड बी टू हेल्प एम्प्लॉयर और अ रिक्रूटर टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ स्ट्रेटेजिक पर्सन। जब आप इतनी सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस नॉन क्वांटिफाइबल अप्रोच में मेंशन कर देते हैं, तो इससे इससे ऐसा लगता है, वी यूज्ड टू यूज दिस टर्म, मुझे वो याद आ गई, द पर्सन इज बेसिकली अ पेपर टाइगर, operational, a kind of paper pusher attitude, non strategic mindset, कि बहुत सी चीजें लिखी हैं लेकिन उसमें से कोई रिक्रूटर के लिए या कंपनी के लिए की टेक अवे नहीं है। ठीक तो है। थोड़ा स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ सीवी बनाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और टूल्स मेंशन करें। आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं डाटा एनालिटिक्स के, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के, उसके बारे में कुछ बताएं। So, you know, जब आप ये लिखते हैं to oversee financial transaction processes and reconciliations within the organization, ensuring that robust controls are in operation, तो ये तो बीकॉम भी कर रहा है, तो एसीसीए ने क्या किया फिर? ये तो बहुत ही बेसिक सा टास्क है। ये तो मेरे ख्याल में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आई डिड माय मास्टर्स इन मार्केटिंग, तो ऐसा बेसिक्स तो मैं भी कर रहा था। तो वो बीकॉम और एसीसीए क्वालिफाइड के सीवी में ना एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस होना चाहिए। वो माइंडसेट ही और है ठीक है, एसीसीए का, सो इसको जरूर फोकस बिल्कुल। कीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जी, लॉन्ग वेटेड सीवी है जी सैयद उमर अख्तर की। ये ग्रुप्स के सुमेरा खालिद है जी, अभी करें जी, सुमेरा खालिद बिल्कुल लाइन में है जी, करें। नाउ अब किसकी टर्न है जी, अली की है या सना शराज की है? देखिए, जी सॉरी, विद सनाज परमिशन इसमें मैं ये कमेंट कर देता हूँ। ये सीवी हमारे पास कल भी Sure, आया था, sure. बट Ali, स्टिल आई एम सेइंग इट्स हाँ, जी, sure, sure. मुझे कुछ स्टार्ट में इम्प्रूवमेंट नजर आ गई है। कल इसमें एड्रेस मिसिंग था जो आज है। मोबाइल्स वजीहा ने एडवाइस किए थे कि आप 2 मेंशन कर दें, तो चले उन्होंने कर दिए। वैसे एक से भी काम चल जाता है, लेकिन सिंगल लाइन में ही कर दें क्योंकि प्रॉपर स्पेस भी यूटिलाइज करनी है ना। और दूसरी यस, बात ये कि आपको अभी भी ये 2 पेजर सीवी की जरूरत नहीं है। आप इसको काइंडली इस माइंडसेट से प्रिपेयर करें, यू नीड अ 1 पेजर सीवी।
प्रोफेशनल समरी अभी भी रिड्यूस करें, बहुत ज़्यादा आपने लिख दिया है। कोर कॉम्पिटेंसेस, मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स में आपने सब चीज़ों को बोल्ड इटैलिक कर दिया है। सो इट इज़ एडिंग अ वेरी एनरिचिंग इम्प्रेशन। ऐसा नहीं करना है। आप सर्टिफिकेट इन ऑफिस, सर्टिफिकेट 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 सर्टिफिकेट, so 7 times you have mentioned your certificate in, so that's सर्टिफिकेट। called data. Yeah, so that's called data redundancy. आपको ये नहीं करना है। You can simply write certificates के अंदर ऑफिस मैनेजमेंट कॉमा दिस कॉमा दिस, 5 से 6 सर्टिफिकेट्स एक लाइन में ही आ जाएंगे आपके। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्टिफिकेट की बात कर रही हैं जिसके अंदर कोई लीन सिक्स सिग्मा, 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल है, ब्लैक बेल्ट है, तो फिर आप उसको बड़ा सेपरेट मेंशन करें। बाकी सर्टिफिकेट इन क्रिएटिव राइटिंग के बड़े बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं और आपको ये पता चलेगा 2-3 साल बाद, तो आप प्रॉब्लम आप यू वुड लाइक टू एक्सक्लूड देम। अच्छा, सीवी बाय द वे 1 पेजर ही है, सो इसे 2 पेजेस में चला गया, बट स्टिल ये चीजें रेक्टिफाई होने वाली है। दैट्स वेरी बेसिक कि आप अपनी मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स में सिर्फ अपने सर्टिफिकेट्स मेंशन कर रहे हैं। अब सेकेंडली जब आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं तो सेकंड पेज को आप ऑब्वियसली वो स्पेसिंग रिमूव करके उसको 1 पेज के ऊपर ही भेजें। जी चले, वो तो फिर इग्नोरेबल है, लेकिन अरसलान अगर ये एक एसीसीए क्वालिफाइड पर्सन का सीवी है, देन आई एम सॉरी टू से बट that really needs to be done, really needs to be redone. Redone. I, बिल्कुल। I believe an ACCA qualified person doesn't really deserve to be drafting एक्चुअली this type of शी इज एससीसीए फाइनलिस्ट, अभी इनका एससीसीए कंप्लीट नहीं हुआ, तो मे बी दैट्स अ रीजन। बट इसमें ये है कि ऑब्वियसली गाइडेंस की हमें ज़रूरत रहती है हर वक्त, तो इसमें ये है कि मेजर अकम्पलिशमेंट्स को इसको कवर किया जा सकता है। क्वेश्चन इज दिस कि कोई भी बैड एक्सपीरियंस बैड नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप उससे कुछ सीख लें। अगर आप कुछ सीख लेते हैं तो वो आपका कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं होता। अब बात ये हो रही है कि हम लोगों ने सीवीज के बारे में सेशंस ले लिए हैं, उसके बारे में काफी कुछ हमने सीखा भी है, समझा भी है, गाइडेंस भी दी है, टॉप पे हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं यहाँ आए हैं। तो नाउ अब आपको चाहिए, अब थोड़ी सी एफर्ट करें। ये सर्टिफिकेट्स के ऊपर मैंने कल भी बात की थी, स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था कि आप एक ही हेडिंग दे दें सर्टिफिकेट्स की, और उसमें फिर या तो 1 लाइन पे जैसे अली ने कहा, या बहुत इंपॉर्टेंट आपने कुछ सर्टिफिकेट लिए हैं तो उनके नाम मेंशन कर दें आप। अब आपने सर्टिफिकेट को 10 दफा लिख दिया यहाँ पे, ऑब्वियसली रेपिटेटिव है ये कोई भी जो एक्सपर्ट, आप खुद देखें ना, आप जब एम्पैथी कॉन्सेप्ट को आप लेते हैं तो आप खुद देखें कि अगर आप एक इंटरव्यूअर होते हैं तो आप क्या इस तरह की सीवी को एक्सेप्ट करेंगे? आप खुद देखें ना। तो हाँ, इसके बाद जब भी आप सीवी बनाएं जरा उसको एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी परसेप्शन से देखा करें कि सीवी किस तरह की बनी है। ठीक है जी। और बाकी इसमें ऑब्वियसली मेजर चेंजेस होने वाली हैं, और मेरा ख्याल है अब इनको कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसी से भी आपका कंप्लीट होने वाला है जी। नेक्स्ट सीवी की तरफ हम चलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग वेटेड सीवी सैयद उमैर अख्तर हैं, जो ग्रुप में भी काफी देर से कह रहे हैं कि सीवी मेरी रिव्यू कर दें, मेरी रिव्यू कर दें, मैंने रिव्यू करवा के जानी है जी। तो उनकी सीवी जो है वो अपलोड हो गई है जी। सना, नाउ इट्स योर टर्न। अच्छा Arsalan, yeah, so Umair ki CV, I'll be very honest, I've been through his CV before, अच्छा। and I have, and I think it's not a bad CV at all, because it highlights जो इन्होंने काम किए हैं। So मेरा शायद थोड़ा biased view भी है, so I would suggest कि अली इसको review कर लें, would be more relevant and much more better. But it's a one pager. For me, इंडिपेंडेंस का हमने ख्याल रखना है जी, और इंडिपेंडेंस देखते हुए आप चीज के ऊपर फीडबैक दें। एसीसीए के फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो यहाँ पे फॉलो होंगे। बिल्कुल। अच्छा देखें, I would rate the CV all positive. CV is sketchy, fonts are reasonable. I can easily grasp the CV with, I can easily skim through it without taking too much time. Key areas सिर्फ आपने 4 लिखे हैं. You could have written about 5 to 6 or maybe 8 to 10, which will nullify the impact. So well balanced CV है. 4 से 5 JDs दी गई हैं, key areas भी limited लिखे हैं, और फिर हर experience के नीचे achievement आ रही है, which is a very good approach.
So that's fine. It's a good CV, and I would say, to be honest, that's the best CV so far. Yeah, it's a very professional CV. It's good. हाँ देखिए जी, सब बोल्ड में हाईलाइट किया है आप अपने अपनी जी एक्सपीरियंसेस को। फिर जो आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन आगे एक्सप्लेन की है, अनलाइक अदर सीवीज मैंने देखा बहुत बड़े बड़े बुलेट्स आ रहे थे वहां पे, तो आपको बुलेट्स ही नजर आ रहे थे, जेडी नजर ही नहीं आ रही थी। तो जब आप हाइफन यूज करते हैं, हाँ देखिए, तो जब आप हाइफन यूज करते हैं ना, तो आप बेसिकली एम्फोसिस कर रहे होते हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पे, मींस यू हैव समथिंग सॉलिड टू टेल। इसमें भी नीचे अचीवमेंट्स आ गई हैं, फिर उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर है, टाइटल है, कंपनी है, लोकेशन है, टेनर है। सो गुड जॉब। चलें जी, कांग्रेट्स कि आपकी सीवी आपकी अच्छी है। सैयद उमैर को आप फीडबैक दे दें, अगर वो काफी देर से आपसे फॉलो अप है, जस्ट टेल हिम इट्स अ गुड जॉब डन। ही इज ऑनलाइन, मतलब वो अपना फीडबैक सुन रहा है। ठीक है, ठीक है सही। नेक्स्ट सीवी करें जी, फुरकान फारूक जी। नाउ सना जी। ठीक है, okay. The clients that are अच्छा जी। So first and foremost, I would say information system acquaintance systems. अच्छा, okay. Oracle अगर आपने mention किया हुआ है, you can simply mention your such skills together. ठीक है, key knowledge of basic business processes, its controls and best practices. So when you say business processes, is it generic you're talking about? Is it a particular industry you're talking about? Is it a particular sector you're talking about? उसके बारे में बात करें. Please do not start from matriculation. 2008 was way back. I think अगर आपने BCom किया हुआ है, so BCom से ऊपर should be sufficient. मेरे तो ख्याल में ACCA से ऊपर should be sufficient. It also depends कि आप अपनी कौन सी qualification को highlight करना चाह रहे हैं, right? So I think ACCA and above is more than sufficient. नीचे वाला आप exclude कर सकते हैं. फिर जो आपने अपने ऊपर, again I would say कि because आप you're an experienced individual, you've been working since 2012. तो जो आपके clients हैं, जिसके बारे में अरसलान भी पहले बात कर चुके हैं, I think it's okay to mention your sectors and very basic things rather than आप एक एक चीज highlight करें कि हर client पे आपने क्या काम किया, right? Because as an audit trainee or as an audit supervisor, more or less जिस भी client पे आप गए होंगे, काम more or less same ही हुआ होगा, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, so you can combine that together. तो उसको आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं. बीच में थोड़ा ये जो आपने clients वाला part रखी, you don't have to make it into bold font. Normal भी it would have been fine. आप इसको club भी कर सकते थे, अपने sectors को और key responsibility सबकी आप combine भी बता सकते थे कि key highlights ये key projects थे इस sectors में. So वो आपके लिए काफी sufficient रहता. जो आपका first statement है about yourself, that's very generic. That's a one-liner, which only tells me that you are an ACCA qualified with this much experience. That's it. It doesn't state anything else. मुतेद अगर बिल्कुल टॉप पे आ जाए, बिल्कुल और ऊपर चले जाए, राइट? जो आपकी करियर समरी है वो लिटरली वन लाइनर है. सो मे बी आप इसको थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट योरसेल्फ, योर की स्किल्स हियर, what key roles you have been doing, उसके बारे में बात कर सकते हैं. Expertise, again, Oracle Financials. Oracle is a suite. You just have to write Oracle. You don't have to write Oracle Financial, Supply Chain, BI, Enterprise Asset Management. You can choose different languages. You can choose different sentences or words.
cost management हो गई, financial statement analysis, financial reporting, implementation of IAS and IFRS. That's a given. When you have worked for so long as a professional, वो चीज given होती है, तो उसको आप exclude भी कर सकते हैं. इसकी जगह I would suggest कि आप थोड़ी सी, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, bring in softer elements, highlight your softer skills also, because that play a part, that tells us about what kind of a person you've been. And जब आप अपनी responsibilities को highlight करते हैं, तो उन responsibilities को थोड़ा reflect भी करना चाहिए जो आपकी skills हैं, you know, ताकि वो tie in करें together. To lead all implementation and other projects related to ERP, suggesting improvement in business and ERP processes of finance and supply chain. Again, आप अपनी responsibilities को जब पढ़ो, उसको देखो कि कहाँ पे आप sentences को combine करके एक holistic sentence बना सकते हो, instead of mentioning one thing, you know, 2 times in a different manner. So वो चीजें आपकी एक जगह भी combine हो सकती हैं. जरूरी नहीं है कि हर job responsibility के नीचे 4-5 bullets ही हों. Key bullets जब आप अपने key achievements में डालते हैं तो वो 2-3 थी, they look fine. So थोड़ा सा आपको इस तरह से, आप जब अपनी revise करोगे resume, तो eventually it will fall on one page. It will not go beyond one page. जी. ठीक है. Thank you, Sana, for your detailed feedback. Now, Ali, it's your turn. This is your last feedback on the CV session. So kindly अपना feedback दीजिएगा. जी, I think बस not really much. The number of tables need to be reduced. Plus the education, जिसके अंदर he's been talking from his, you know, metric and then intermediate, like we said earlier, वो सारा reduce करने की ज़रूरत है. And if it's been done, the CV will be reduced automatically to a single page. ठीक है, ठीक है. Thank you, जी. thank you. Hopefully जितने भी participants हैं उन्होंने सारा session देखा है, सुना है, और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स स्टिल अभी सीवीज के अंदर हमने देखी हैं. वेरी फ्यू सीवीज जो कि कल से बेहतर थी, और लेकिन उनमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी. अच्छा, अब हमारा जो बेसिकली जिनकी सीवीज नहीं भी रिव्यू हुई हैं, एटलीस्ट उनको बेंचमार्क मालूम हो गया है, बेंचमार्क पता लग गया है कि सीवी किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है. तो हमने इतनी सीवीज रिव्यू की हैं, तो उन गाइडलाइंस को सामने रखते हुए, पूरे कॉम्बो को सामने रखते हुए आप अपनी सीवीज को अमेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो अब हमारा जो सीवी राइटिंग के ऊपर सेशन है वो हमारा कंक्लूड होता है. अब हमने जो डिस्कशन करनी है वो ये डिस्कशन बस फाइनली ये करनी है. अली, आप कल हैं और परसों हमारे साथ सना शराज भी होंगी. हमने बेसिकली रोल प्लेस करने हैं, रोल मॉडल्स, मतलब इस तरह से कि हमने यहाँ पे डेमो करना है. एक इंटरव्यूअर होगा और एक इंटरव्यूई होगा, और वो ऑडियंस में से ही होगा. ऑडियंस में से एक कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यूअर होगा और वो क्वेश्चन करेगा इंटरव्यू के साथ. सो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो मतलब जो क्वेश्चंस आप पूछ रहा होगा उसको भी अंदाजा हो जाएगा, उसको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है. उसके ऊपर हमें फीडबैक देना होगा, और जो क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा होगा वो हम वही गाइडलाइंस जो हम पहले दे चुके हुए हैं, जिस सेशंस में आप भी थे, तो उनके आंसर्स को हम करेक्ट कर देंगे. नाउ अब हम अपनी ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को क्या बताएं कि मतलब हम इसमें ऑब्वियसली वी हैव 2 आवर सेशन, और उसमें हमें कितने डेमोस करने चाहिए, लाइक 3 to 4 डेमोस विल बी इनफ फॉर अ सिंगल डे. और ऑब्वियसली सेम एक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो फॉलो होगी, सेम एक्टिविटी. सो हम एक सेशन के अंदर कितने डेमोस कर सकते हैं, और उसमें हम उनको क्या पोजीशन और क्या इंडस्ट्री के बारे में बताएं जिसके लिए तैयारी करके आए. मतलब हम इनको एक पोजीशन बता देते हैं, और उसके साथ साथ ये दोनों एक जो आपके होते हैं वो टेक्निकल क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ जो पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इन सब की तैयारी करके आएंगे. फुल फ्लेज इंटरव्यू होगा टिल दी सैलरी एक्सपेक्टेशंस तक. तो ये हम एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं. अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर मुझे गाइडेंस दे दें, मेरी ऑडियंस को गाइडेंस दे दें कि ये किस पोजीशन के लिए आ जाएं, और कितने सेशंस हो हम कर सकते हैं. पहले ये मुझे आप एक ऑब्वियसली आइडिया दे दें, फिर हम किस पोजीशन के लिए करें और किस इंडस्ट्री के लिए करें,
और तो उसके लिए फिर जरा हम मेरी जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरी लवली ऑडियंस बैठी हुई है, उनके लिए जरा इजी हो जाएगा, वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके आएंगे, और उसमें से लोग भी जो है वो बस हम आज ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो कल आके अपना डेमो जो है वो प्ले करेंगे। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा बता अली। अरसलान, मेरे ख्याल में इमीडिएटली तो मैं आपको कोई रोल्स नहीं बता सकूंगा, बिकॉज यू नो इफ आई हैड बीन टोल्ड अबाउट दिस अर्लियर तो हम कुछ इसके ऊपर प्लान कर लेते हैं। लेकिन ठीक है। देखें, मुल्क कोई भी हो, हम्म। इंडस्ट्री सेक्टर कोई भी हो, ठीक जो है। इंटरव्यू की थीम है दैट विल ऑलवेज रिमेन सिमिलर। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि मेरे ख्याल में हम 3 से 4 डेमोस कल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ठीक। यू नो टेक सनाज ओपिनियन ऑन दिस। और ठीक है। उसमें हम 6 to 7 क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, और क्वेश्चंस बड़े टिपिकल होते हैं, हर इंडस्ट्री हर सेक्टर में सेम होते हैं, until unless अगर आप बहुत सीनियर रोल के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यूअर ने उसमें डीप डाइविंग करनी है, दे कैन गो अप टू लाइक 15 क्वेश्चंस। अदरवाइज हम्म। मेन थीम और एजेंडा है दैट इज लाइक 6 to 7, हार्डली 8 क्वेश्चंस, और हम्म। इसी को जहन में रखते हैं, और कल हम कोई 3 से 4 डेमोस कर लेते हैं। बाकी ठीक है। रोल्स क्या करने हैं, मेरे ख्याल में आप ये कर सकते हैं कि आप अगर इन सारी ऑडियंस को किसी तरह से अप्रोच कर सकते हैं, तो हम्म। आज या कल अर्ली मॉर्निंग आप खुद से कोई 4 से 5 मॉक रोल्स बता दें इनको। मैं अभी दिल बता देता हूँ। प्रिपेयर्ड, जी जी, कुछ इस तरह से हो अब सकता है। मैं अभी बता सकता हूँ। सना, इसके ऊपर आप कुछ ऐड करना चाहेंगी और फिर मैं रूल्स के बारे में बता देता हूँ। नहीं, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। 3 से 4 शुड बी इनफ फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्या सवाल होते हैं, क्या जवाब देने चाहिए। अगेन, हर बंदा अपने तरीके से जवाब देते हैं, तो देयर इज नॉट ऑलवेज अ राइट एंड अ रॉन्ग आंसर, लेकिन मोटी जी। मोटी चीजें पता चल जाती हैं 3 से 4 रोल प्लेस में, सो दैट शुड बी सफिशिएंट। जी, हम एक पोजीशन कर लेते हैं जी, बिल्कुल एक फ्रेश कैंडिडेट की, जैसे कि हम इसको इसमें 3 से 4 डेमोस को इस तरह से कर लेते हैं। एक फ्रेश पोजीशन के लिए फाइनेंस एग्जेक्टिव, और एक हम रख लेते हैं फाइनेंशियल कंट्रोलर, और क्योंकि मिड टायर पोजीशन होती है, और थर्ड हम रख लेते हैं ऑडिट मैनेजर। तो इसमें हमारी तीनों जो लेयर्स हैं वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, और दैट सीम्स इसमें, फाइन। ठीक है, ये 3 डेमोस हम रख लेते हैं, और इसके साथ साथ मुत्तहिद, हमें जो है 3 डेमोस के लिए मुत्तहिद, मैं वैसे आपका नाम ले रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा मजीद फोकस हो जाए। 3 डेमोस के लिए हमारे पास 6 कैंडिडेट्स का होना जरूरी है। तो इसमें अभी मैं अपनी जो ऑडियंस है उनको मैं कहूंगा कि वो रेज योर हैंड्स, कि इंटरव्यूअर कौन बनना चाहता है, तो वो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें कि हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, फाइनेंस एग्जेक्टिव, फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड ऑडिट मैनेजर। 3 पोजीशंस हैं, और जो इंटरव्यूअर बनना चाह रहा है इन तीनों पोजीशंस के लिए, रेज योर हैंड्स। मुताहिद, आप प्लीज उनका नाम नोट कर लें। और जो इसके लिए इंटरव्यू बनना चाह रहा है, वो प्लीज रेज योर हैंड्स और चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें कि वो इस पोजीशन के लिए इंटरव्यू के तौर पे आना चाह रहे हैं। सो अब हमारी ये पोजीशंस हैं 3, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, फाइनेंस एग्जेक्टिव, फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड द ऑडिट मैनेजर। और आप जो हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पढ़ के आना है। अब मैं उसमें स्पेसिफिकली ऑब्वियसली कोई नाम नहीं मैं ले सकता, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं, या जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आपने सारी इंफॉर्मेशन बेशक जेनेरिक, मतलब आपने कोई सी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पकड़ ले, चले हम ले लेते हैं, नेस्ले को ले लेते हैं। आपने उनकी इंफॉर्मेशन जितनी पब्लिकली अवेलेबल है पढ़ के आनी है। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर टेक्निकल नॉलेज, रिलेटेड टू योर सॉफ्ट स्किल्स, क्या आपके प्रेजेंटेशन पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो इंटरव्यूअर ही पूछेगा। नाउ अब इंटरव्यूअर ने तैयारी करके, अब इंटरव्यू ने किस पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है, कि उन्होंने किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उन्होंने किस तरह से एक इंटरव्यू को डील करना है, कैसे इंटरव्यू स्टार्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस को लेके जाना है, किस सीक्वेंस के अंदर, और उसको एंड करना है। तो इंटरव्यूअर जो बनना चाह रहे हैं वो प्लीज मेंशन कर दें कि वो किस पोजीशन के लिए इंटरव्यूअर के तौर पे आना चाह रहे हैं, और जो इंटरव्यू के लिए आना चाह रहे हैं वो प्लीज मेंशन कर दें कि किस पोजीशन के लिए आ रहे हैं। मुताहिद, आपको मेरी बात समझ आ गई है?
जी अरसलान, बिल्कुल मुझे समझ आ गई है। और अगर अटेंडीज आप व्हाट्सएप पे भी ये मैसेज कर दें, हमें लिख के भेज दे, तो मेरे ख्याल में इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये चैट बॉक्स तो अभी थोड़ी देर बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, तो इट विल बी गुड अगर दे कैन मेंशन ऑन द व्हाट्सएप एज जी वेल। आप जो है वो ग्रुप के अंदर जो है मेंशन कर दें, ग्रुप के अंदर मेंशन कर दें और आप टैग कर दें मुताहिद को। ठीक है, आप मेंशन करके अपनी पोजीशन के लिए और इंटरव्यूअर का रोल है या इंटरव्यू का, आप उसमें ये दो चीजें मेंशन करके टैग कर दें, किनको आप मुताहिद को टैग कर दें, तो कल फिर हम जो है वो लेके आके हम फिर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अली एंड सना, ऑब्वियसली सना कल आपको ऑब्वियसली बिजी स्केड्यूल है, ऑब्वियसली आपका बहुत कीमती टाइम है, यकीनन आप हमें थर्सडे को ज्वाइन करेंगी। अली आप हमारे साथ कल होंगे और थर्सडे को भी होंगे। आपने भी बहुत ज्यादा एफर्ट किया, हमारा मतलब बहुत ज्यादा टाइम दिया। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, बट थैंक यू। अब जो मैंने बात की है इसके ऊपर कोई अली आप कुछ कहना चाहते हैं, और देन आफ्टरवर्ड सना की तरफ हम आते हैं। नहीं अरसलान, मेरे ख्याल में ये काफ़ी रीजनेबल है और दैट्स ओके। आई ओनली सेकंड इट। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा रीजनेबल अप्रोच हो नहीं सकती है। बाकी ये कि जब कल मॉक इंटरव्यूज होंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लर्निंग कर्व्स होंगे अटेंडीज के लिए, सो वील सी के उसमें क्या है जी। बाकी दैट सीम्स फाइन, आई एम ओके विद द फ्लो। जी सना, थर्सडे के लिए Arslan, I आप। think जी नहीं, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मेरी सिर्फ एक सजेशन होगी या जी जी एक चीज रेकमेंड करूंगी कि हमने जैसे सीवीज आज रिव्यू किए हैं, सो प्रोबेबली पीपल हु आर अपेयरिंग एज एन इंटरव्यूई एंड एन इंटरव्यूअर, तो वो अपनी ही या जो इंटरव्यूई है उसी की सीवी को लेके चलें, तो उनको भी पता चलेगा कि जब कोई और उनकी सीवी पढ़ता है तो वो कैसे इंटरप्रेट होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट? ये भी बिल्कुल सो ये एक अच्छा आइडिया है कि जब आप इंटरव्यूअर्स के लिए कि एक दोनों ने इंटरव्यू कैसे लेके करना है, कैसे कंडक्ट करना है, और जब वो दूसरे की सीवी देखेंगे तो वाकई में उनको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक कि आप इसको इस तरह से कर लें, एंड दिस शुड बी सफिशिएंट। योर पोजीशंस यू हैव मेंशन्ड, आई थिंक दे कवर ऑल द एस्पेक्ट्स जो आपके एसीसी के अंडर फॉल करते हैं, सो विल बी गुड ओवरऑल। जी ठीक है जी। नाउ सेशन इज गोइंग टू एन एंड। वंस अगेन प्लीज जो मेरे लिसनर्स हैं, मेरी ऑडियंस है, प्लीज थैंक यू, प्लीज थैंक यू टू सना एंड अली। इन्होंने वाकई में शायद मैं भी इतनी एफर्ट ना कर पाता जितनी एफर्ट इन्होंने की है एसीसी फर्टर्निटी के लिए। ये आते हैं, वजीहा ने ज्वाइन किया, हमें जवाद ने ज्वाइन किया। देखें ये ब्रांड रेपुटेशन है, ब्रांड की रिकग्निशन है, जिसकी वजह से जवाद भी आए हैं, वजीहा भी आई हैं, सना भी आए आज। पहले नेक्स्ट वन एक दिन छोड़ के एक दिन फिर आ जाएंगी वो। उसके साथ साथ अली हैं, अली ने पूरा वीक हमें दिया है। सो इट्स आल्सो अ ब्रांड रिकग्निशन कि देखें हम जो पीपल हैं दे लव टू वर्क विद एसीसी एज वेल, और हम इनका भी वी आर वेरी मच थैंकफुल टू देम कि इन्होंने भी हमारे लिए टाइम दिया। और ये वाकई में आप ये देखें कि इन दिनों में ये बात करना चाहूंगा थोड़ा सा कि टाइम निकालना लोगों के लिए वाकई में बहुत मुश्किल होता है। बट जब ये लोग अपनी सारी एक्टिविटीज को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, फैमिली का टाइम छोड़ के, अब देखें टाइम क्या हो रहा है, 9:30 होने वाले हैं और सुबह इन्होंने फिर से ऑफिस जाना। ठीक है, तो ये लोग आते हैं। बट बहरहाल जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सना एंड अली। इंशाल्लाह अब हमारी जो है कल मुलाकात होगी अली आपसे, एंड परसों जो है अली एंड सना हम सारे जो आपस में फिर इस सेशन के ऊपर बैठते हैं जी। थैंक यू जी। Thank you so much, Arsalan. It was pleasure here, and I would just say to everybody, do not be demotivated at all. Resume writing, it's not one time activity. आपको हमें भी at this point in time बार बार अपना resume देखना पड़ता है, so eventually you will get the hang of it. बाकी Arsalan, I would also like to appreciate your efforts. I think you're doing a wonderful job for ACCA Global and arranging all these sessions and helping the candidates. It's a really nice initiative and it's a job well done. So thank you so थैंक यू much for making थैंक us यू a part of it. Thank you. थैंक यू।